सभी प्राचार्यों को, यहाँ उपस्थित सारे एजुकेशनिस्ट, हमारे और भी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। रविंद्र सर, आप अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज, आप अपनी तरफ से खुद को म्यूट कर लीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि मैं संजय सर से पहले बता भी चुकी हूँ, एक बार फिर आपसे बताना चाहती हूँ, आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में जो है हमारी जो भदोही की डीएम है आरिका अखौरी जी, वो हमारे साथ जुड़ेंगी और हमें जो है जो हमारा इंस्टीट्यूशन है ग्रीन चैंपियन अवार्ड जिससे मिला है उसको वो प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगी। और दूसरे भाग में जो है मेरी वर्कशॉप होगी स्वच्छता एक्शन प्लान को लेकर। अब मैं महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन की प्रतिनिधि हूँ। आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मैं डॉक्टर डब्ल्यू.जी. प्रसन्ना कुमार जो चेयरमैन है एमजीएनसीआरई के, उन सबकी उनकी ओर से और मेरी पूरी एमजीएनसीआरई आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी रश्मि मैम से कि वो पीपीटी के जरिए हमें ये बताएं कि उनका जो कॉलेज है काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर, उन्होंने इसको अपने कॉलेज में स्वच्छता को लेकर जो भी कार्यक्रम किए हैं वो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमसे शेयर करें। रश्मि मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। एक बार मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स से आग्रह करूंगी कृपया अपना माइक म्यूट कर लें जिससे प्रेजेंटेशन को सुनने में आसानी हो। प्राचार्य सर से अनुरोध है, सर अपनी माइक अभी ऑफ कर लीजिए। देंगे ना तो ये उससे जुड़ेंगे कैसे रिकॉर्डिंग तो दिखाई दे। डोंगरे सर, आपसे अनुरोध है, आप माइक थोड़ा आप म्यूट कर दीजिएगा जी। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जी मैम, रश्मि मैम बिल्कुल विजिबल है। आपकी आवाज हमें थोड़ी सी कम आ रही है। आवाज कम आ रही है मैम? हाँ जी, एक मिनट मैम। गुड मॉर्निंग, आई डॉक्टर रश्मि। जी मैम सुनाई दे रहा है मैम जी। मैम यू कैन कंटिन्यू। ओके मैम। I, Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor from Department of Botany, on behalf of my institution, Ken Government PG College, Gyanpur, Bhadohi, welcomes all the dignitaries, all the faculty members present on this online platform to celebrate the district's Green Champion Award ceremony with us, which is given by Mahatma Gandhi National Council of Rural Education and Ministry of Education. First of all, I would like to extend my sincere thanks to Mahatma Gandhi National Council of Rural Education for giving us opportunity to participate in this Swachhata Abhiyan, and for this they have given us some task, and to fulfill this task, under the leadership of our head of the institution, Dr. P.N. Dongre sir, a committee was made. Dr. Kamini Parmar, Dr. Madhu Tiwari, Dr. Sanjeev, Dr. Aymanyu Yadav, Dr. Yaswani, Dr. Arun Singh Yadav. These persons work hard to achieve their action plan. These action plan includes some sort of Swachhata Abhiyan, how to conserve energy, why to conserve energy, why there is a need to conserve groundwater, and also use of toilets, and to emphasize the role of students and team members in the post-COVID management. Further slideshow shows the work done by our institution. First one is the Swachhata Abhiyan. For this purpose, our college has adopted a Vedpur village
in district Bhadohi, where our team members and students went there and they do some cleanliness there and create awareness about that, why cleanliness is important for them. Because if environment is clean, only then a person can be happy and healthy. To create awareness about the conservation of energy, the team members and the student organizes some sort of essay competition, poster competition, speech competition on the topic energy and water conservation. Not only they organizes these programs, but also they call there some eminent personalities that deliver some talks on that topic and try to create more awareness to conserve energy. Further, to conserve groundwater, they celebrated a groundwater week to conserve groundwater week from 16 to 22 July 2021 with the theme Catch the Rain, Where It Falls, When It Falls, and motivated villagers to establish a rain harvesting system in their village. They organizes also essay competition on that topic, so the student can aware that why there is a need to conserve groundwater, why it is going to deplete day to day. It creates a lot of awareness among the villagers and our students. रश्मि मैम, मैं माफी चाहूंगी, आपकी तरफ से थोड़ा सा एको आ रहा है मैम। अगर आपने अपना मोबाइल ऑन करा है तो स्विच ऑफ कर दीजिए। अभी फिर हो रहा है मैम? हाँ जी, थोड़ा सा एको आ रहा है। नहीं, कोई सिस्टम ऑन नहीं है मैम, सिर्फ मोबाइल ऑन है मेरी। अरे सॉरी, मेरा लैपटॉप ऑन है, बाकी किसी और का माइक ऑन होगा मुझे लग रहा है, इस वजह से। हाँ जी, क्वाइट पॉसिबल। जी, मैं निवेदन करूंगी, अगर कोई और जिनका माइक ऑन है प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए जब तक रश्मि मैम जो है हमारे साथ पीपीटी शेयर कर रहे हैं। जी, धन्यवाद बहुत बहुत। मैम, यू कैन कंटिन्यू। ओके मैम। फर्दर, emphasis is given on use of toilets, and for that purpose our students made a awareness rally with the slogan बाहर जाना बंद करो, शौचालय का प्रबंध करो, and also they emphasize the use of girl child education, because if a girl child is educated, only then she can make a healthy environment. Yes, Swachhata Abhiyan is not completed without conservation of environment, and for that purpose, our team members have selected some plants that help to reduce the pollution. They took this plant to that area and planted them with the help of villagers of Vedpur village. किसी की माइक ऑन है, यदि ऑफ कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सर, आपके प्रिंसिपल सर, आपकी तरफ माइक ऑन है? आप लोगों ने ये जो एक्टिविटीज की उसी में एरिया आपको और देना है। Students also may play some natak on creating awareness about the use of conservation of energy, conservation of water, and use of toilets. When the villagers are able to see them in front of their eyes, they are more able to learn why these activities are done, why there is need to conserve water, there is need to conserve energy, and why there is need to use of toilets. Madam, rural engagement management, COVID-19 management, our students and the team members try to distribute masks to the students as well as to the villagers. They distributed food essential, and also they established a mask bank in that village and try to aware students as well as villagers how they can
protect the spread of COVID-19 and protect themselves from this disease by using social distancing, by using masks. The team members have done a lot of work. These are some glimpses, and these are all about from my side. Thank you. किरण मैम आप म्यूट में हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी जी, अरे थैंक यू सुप्रिया मैम। तो रश्मि मैम, ये मैं ये कह रही थी, मुझे सबसे अच्छा तो आपका ये लगा जो आपने ग्राउंड वाटर वीक मनाई आपके इंस्टीट्यूशन ने, कैच द रेन। तो ये मुझे बहुत अच्छा जो है आपकी पहल लगी। दूसरा मैम, आपने बीच में टॉयलेट्स का जिक्र किया था, और मुझे यही लगता है हिंदुस्तान में हम अक्सर टॉयलेट्स तो बना लेते हैं, वॉशरूम्स तो बना लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वॉशरूम्स की देखरेख ठीक से नहीं हो पाती। उसमें जो इक्विपमेंट लगा होता है उसको हम यूज नहीं करते, अगर वो सार्वजनिक है तो हम उसको तोड़ फोड़ देते हैं। तो ये जो आपकी पहल है टॉयलेट्स को लेके भी मैम बहुत अच्छी लगी। तीसरी बात मैम जो मुझे और ज्यादा पसंद आई, वो जो आपने कही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके तहत जो भी आपने कार्यक्रम किया वो भी मैम मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो कभी आपके इंस्टीट्यूशन में आकर जो है सामने से ये सब देखना मैं पसंद करूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि मैम आपका। थैंक यू मैम। जी, हमारे साथ आज 45 जो है पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, और नंबर मुझे लग रहा है लगातार बढ़ते जा रहा है। मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मेरे साथ मेरी सहयोगी भी हैं MGNCRE से, सुप्रिया बेंतिया मैम। बेंतिया मैम की मैं एक खास बात आपको बताऊं, ये स्वच्छता को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, और मतलब शिद्दत से स्वच्छता के बारे में सोचती हैं। और उनकी एक खास आदत है, वो जब भी किसी से मिलती हैं उनसे ये पूछती हैं कि मुझे बताइए स्वच्छता को लेकर आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो आपको यूनिक लगती है। तो उन्हीं का प्रश्न जो है मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास जो है 15 मिनट हैं जब तक DM मैम हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं एक एक करके सबसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी स्वच्छता को लेकर कोई यूनिक हैबिट या कोई आदत। संगीता मैम, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एंड थैंक्स कि आपने मेरा परिचय करवाया। किरण मैम, यहाँ पर आपकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनमें 2 सर हैं, देखिए मिस्टर अजय जी हैं और रविंद्र सर हैं, जो शायद कुछ बात कहना चाहते हैं बिकॉज दे रेज्ड देयर हैंड। तो जी 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 मैम, जी मैम। किरण मैडम, मैं डॉक्टर डोंगरे बोल रहा हूँ। हाँ जी डॉक्टर डोंगरे जी, बोलिए। किरण मैडम, मैं डॉक्टर डोंगरे बोल रहा हूँ। जी सर, मैं सुन पा रही हूँ आपको। DM मैडम जुड़ चुकी हैं प्रोग्राम में। अच्छा जी 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 जी। आईडी बोलिए, मुझे पिन करना है उनको। सर उनकी आईडी पता है आपको, किस नाम से जुड़े हैं सर वो? सर मैं उन्हें स्क्रीन पे नहीं देख पा रही हूँ। सर आप आई एम हियर ऑनलाइन किरण मैम। जी जी मैम जी जी, आप उनका वेलकम प्रोग्राम को। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। नमस्कार DM मैम, मैं अभी भी आपको स्क्रीन पे नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मौका मिला है आपका स्वागत करने का। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी आज की मुख्य अतिथि DM आरिफा अकोरी मैम जो है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, गुड मॉर्निंग एंड a special namaskar to you ma'am. It is my privilege and honor to welcome you on behalf of Dr. W.G. Prasanna Kumar, Chairman MGNCRE. Ma'am, you are not new to the guest present here today.
but for me, yes, of course you are. For the little that I know about you, I found that you are one person who is full of lot of energy and determination. You're always found amongst the people, listening to their problems, and even at times going around doing surprise checks. As a woman myself, ma'am, this one particular picture of yours that I saw on Twitter moved my heart and also made me feel very proud. You are an epitome of womanhood, ma'am. And when I saw this picture of yours, where you are donating blood, I felt proud to be associated with you. For I felt that here is this one leader who believes to lead by example. So, on that note, ma'am, I again extend a very warm welcome to you. Namaskar, ma'am, and a warm welcome. Thank Dear you. ma'am, I would now. Ji. Thank you, Kiran, for welcoming me, and thank you for your very kind words of appreciation. Thank you so much. My pleasure, ma'am, my pleasure. And ma'am, I would now request you to grant me permission to begin with the award ceremony. May I, ma'am? Yes, please do that. जी, थैंक यू मैम. उससे पहले मैं चाहूंगी कि डॉक्टर पीएन डोंगरे, प्रिंसिपल काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर, हम सबकी ओर से मैम का जो है एक बुके देकर स्वागत करें. Thank you so much, ma'am, for accepting this humble gift of ours. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम यहाँ ग्रीन चैंपियन अवार्ड सेरेमनी के लिए इकट्ठे हुए हैं. डीएम मैम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें अपना थोड़ा सा समय दिया. ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है. ये जो अवार्ड है महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर एक नोडल एजेंसी है. 2014 से जो ये एजेंसी है स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई है, और हमारा ये प्रयत्न रहा है महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन में कि हम जो है स्वच्छता अभियान को अब जागरूकता से बढ़ाकर एक एक्शन प्लान का जो है वो रूप दें. इसी के तहत गत वर्ष हमने जितने भी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जुड़े थे, उनमें से 400 इंस्टीट्यूशंस को जो 400 डिस्ट्रिक्ट से हैं अवार्ड देने के लिए जो है हमने एक पहल की थी. तो उसी पहल की श्रृंखला में आज जो है ये अवार्ड काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर को मिल रहा है. मैं डीएम मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रशस्ति पत्र देकर जो है इस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोंगरे जी को सम्मानित करें. डीएम मैम प्लीज. डोंगरे सर, हम आपकी तरफ से अवार्ड सेरेमनी देखना चाह रहे हैं. हम सब एक वर्चुअल ताली तो कर सकते हैं एवरीबॉडी. जी. ग्रेट थैंक टू यू डीएम मैम एंड प्रिंसिपल डोंगरे सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके इंस्टीट्यूशन को आज का ये अवार्ड मिला. अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी आज की जो मुख्य अतिथि हैं डीएम मैम रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वे स्वच्छता के बारे में हमसे अपने विचार साझा करें. डीएम मैम, ओवर टू यू. Thank you, Kiran. Thank you, Dr. Dongre, for having me here. मैं आप सबकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इस समारोह में आमंत्रित किया, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि एज डीएम भदोही डिस्ट्रिक्ट केएनपीजी कॉलेज हमारे जिले का एक आभूषण, हमारे जिले के लिए एक शीर्ष स्थान है इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, और हमारे मुख्यालय पे सिचुएटेड है.
कई यहाँ से इल्यूमिनेटेड और कई फेमस एलुमनाई यहाँ के इस कॉलेज के रहे हैं, जिन्होंने आगे चलकर देश दुनिया में बहुत नाम कमाया है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि KNPG कॉलेज को वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन इनिशिएटिव के तहत डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन का अवार्ड मिल रहा है। और गर्व की बात है कि मेरे हाथों से डॉक्टर डोंगरे को ये अवार्ड मिला, और मैं थैंकफुल हूँ NCRE की, डॉक्टर प्रसन्ना कुमार की, किरण की, कि आप लोगों ने KNPG को इतना इस लायक समझा इस अवार्ड के लिए और उनको अवार्ड दिया। मैंने इसके बारे में जानकारी ली, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट KNPG हैज वर्कड वेरी एक्टिवली in Vedpur village of Gyanpur block of our district. He has taken multiple initiatives in that village to create awareness about स्वच्छता in the village. किरण ने मुझे बोला कि आप स्वच्छता के ऊपर अपने विचार व्यक्त करिए। मुझे लगता है कि स्वच्छता तभी आती है जब किसी व्यक्ति में बिहेवियर चेंज होता है। जैसे किरण ने सही कहा कि अगर आप टॉयलेट्स बना दें लेकिन उसकी रख रखाव, उसका मेंटेनेंस, उसका यूज ना हो, तो वो किसी भी पर्पस को फुलफिल नहीं करता है। तो क्लीननेस के लिए माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बिहेवियर चेंज करने के लिए कम्युनिटी के साथ बहुत एक्टिवली एंगेज करना पड़ता है। एक बार आप जाएंगे तो गांव वाले नहीं आपकी बात सुनेंगे, लेकिन बार बार जाकर उनको उनकी भाषा में अलग अलग तरीके से आप समझाएं, उनको मोटिवेट करें, तो उनमें ये भावना धीरे धीरे जागृत होती है। और स्वच्छता का अभियान जब अपने बिल्कुल चरम सीमा में था, तब हम कम्युनिटी ट्रिगरिंग की बात करते थे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसके अंतर्गत युद्ध स्तर पर शौचालय बनाए गए थे, इंडिविजुअल टॉयलेट्स घर में बनाए गए थे, और डिमांड उसकी कम्युनिटी से ही जनरेट की गई थी। तो उसके लिए बहुत वाइड स्केल पर एक कम्युनिटी बेस्ड ट्रिगरिंग प्रोग्राम का इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने भी लिया था, और उसमें कई प्रकार के इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे। उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी थे, क्योंकि इस कम्युनिटी बेस्ड ट्रिगरिंग में क्या होता है कि आप कम्युनिटी के बीच में जा करके उनको इंस्पायर करते हैं, उनको ट्रिगर करते हैं कि वो जिस प्रैक्टिस को बिल्कुल रोजमर्रा की चीज समझते हैं कि भाई लोटा उठाया और बाहर चले गए शौच करने के लिए, उस चीज को वो समझे कि वो कितनी घृणित चीज है, हाउ बैड इट इज, हाउ अगली इट इज, एंड हाउ डेंजरस इट इज फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो उसको करने के लिए कम्युनिटी के बीच जाना पड़ता है और ये अवेयरनेस पैदा करना पड़ता है। और KNPG के बच्चों ने, उनके फैकल्टी ने, उनके कमेटी मेंबर्स ने ये काम बखूबी किया है वेदपुर विलेज में। साथ ही साथ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी टेकअप किया है, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ग्राउंड वाटर के लिए भी उन्होंने जो कैच द रेन का अभियान चलाया है, विच इज ऑल्सो वेरी कमेंडेबल। So in conclusion, I would like to congratulate MG NCRE for such a wonderful initiative, जो all across the country छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी आकर के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इंस्पायर कर रहे हैं कि इस तरह के सोशल इनिशिएटिव्स वो टेकअप करें। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और खुशी की बात है कि डॉक्टर डोंगरे और डॉक्टर रश्मि के सुपरविजन में KNPG ने इतना अच्छा काम किया, एंड ऑफ कोर्स वी आर लकी टू हैव the guidance of Dr. Prasanna Kumar and Kiran at MG NCRE for this wonderful initiative. So I again congratulate KNPG College, its principal, for this award, and Kiran and Dr. Prasanna Kumar for always supporting our college through your institution. And thank you everyone for having me here. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was indeed a great treat to hear you. And I really like the concept about community-based triggering, ma'am. और आपको सुन के मुझे ये लगा कि आप जो है वास्तविकता से कितनी ज्यादा जो है जुड़ी हुई हैं, मैम। मुझे लगता है बहुत सौभाग्यशाली हैं इस डिस्ट्रिक्ट के लोग जिन्हें आप जैसी DM मिली, एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी ऑल्सो, मैम। एज अ वुमन, इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी to see you sitting in that chair, ma'am. So thank you so much, ma'am, for your kind words. And I understand you're very busy, and ma'am, with your permission now, may I present the vote of thanks? Yeah, please do that. जी, तो धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर PN डोंगरे से अनुरोध करूंगी
कि वह डीएम नेम साहब को उनको सम्मानित करने के लिए, उनसे उनके इंस्टीट्यूशन को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद बोले। डॉक्टर डोंगरे। हाँ जी, मैं डॉक्टर पी.एन. डोंगरे, प्राचार्य केएन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर। आज हमें जो ये पुरस्कार मिला है डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड, इसके लिए शिक्षा का धन्यवाद देता हूँ। और साथ में मैं ये भी समझ रहा हूँ कि इस पुरस्कार के साथ में एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर पर डाल दी गई है। पिछला वर्ष बहुत ही दुख भरा रहा है काफी परिवारों के लिए। हमारे कॉलेज के परिवार में भी काफी दुख की घटनाएं हुई। हमारे महाविद्यालय की एक प्राध्यापिका कोरोना से ग्रस्त होकर हमें छोड़कर चली गई। वो हमारे साथ बहुत मेहनत करती थी और उनकी सबसे बड़ी बात थी कि डिसिप्लिन। तो उस डिसिप्लिन को मैं याद करते हुए आज का ये पुरस्कार उनको समर्पित करता हूँ। फिर किरण मैडम का मैं धन्यवाद देता हूँ, आपसे ही हम लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रसन्न कुमार जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि हमें इस तरह के कार्यक्रम में आपने बुलाया, इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। हमारी जो डीएम मैडम है, ये बहुत ही शांत प्रकृति की और विलक्षण प्रतिभा की महिला है और हमारे कॉलेज के लिए इनका ज्ञानपुर भदोही जिले में डीएम बन के आना एक बहुत हर्ष का विषय है। हमारे महाविद्यालय में जो भी कार्य होते हैं उसमें महिलाओं की भूमिका अग्रणी रहती है। ये तो एक कार्यक्रम जो हुआ है जिसमें हम लोग को आज पुरस्कृत किया जा रहा है, इसमें कोई बहुत अच्छा काम हम लोग अभी नहीं कर पाए थे क्योंकि पिछले साल लगभग साल भर बंद ही था। लेकिन तब भी आपके द्वारा जो हमें 10 सदस्यीय समिति बनाने के लिए कहा गया, इसी अगस्त महीने की बात है जब ये समिति बनी थी और समिति के सदस्यों ने काफी बढ़ चढ़ कर काम करने की कोशिश की और डिस्ट्रिक्ट में जागरूकता करने का प्रयास किया। उसी प्रयास को लगता है आप लोगों ने एक्नॉलेज किया और हमें इस पुरस्कार के लिए चुना, जिसके लिए हम जिले का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के कारण, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज होने के कारण अपने कॉलेज को, अपनी जिम्मेदारी को हम लोग समझते हैं और अपने डीएम महोदया के साथ में हम लोग आने वाले समय में एक मुहिम चलाएंगे। इस वक्त से स्वच्छता ही नहीं होगी, अन्य मुद्दे भी होंगे, क्योंकि ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है रूरल एंगेजमेंट की बात करता है और हमारा जो महाविद्यालय है तो शहरी क्षेत्र में स्थित बिल्डिंग उसकी, लेकिन हमारा अधिकतर जो भूभाग है वो गाँव में है और उससे बड़ी बात है कि हमारे 95% जो हमारे छात्र छात्रा हैं वो गाँवों से आते हैं। तो ऐसे गाँवों से आने वाले बच्चों के लिए काम करने में बहुत आनंद आता है और हमें महसूस किया है कि ऐसे छात्र छात्राओं की जब हम लोग मदद करते हैं और जब उनसे मदद लेते हैं तो एक अच्छी चीज सामने आती है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिनकी प्रेरणा से सब कार्यक्रम हो रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा से सब कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां हर व्यक्ति को जो समाज में कुछ काम करना चाहता है उसको एक्नॉलेज करने की प्रवृत्ति का विकास किया जा रहा है। किसी न किसी तरह से उसके उत्साह का वर्धन किया जा रहा है, जिस वजह से पुरस्कार हमको प्राप्त हुआ है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, क्योंकि इसमें पुरस्कार कम, जिम्मेदारी ज्यादा है। हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि हमारे महाविद्यालय कुछ मामलों में बड़ा यूनिक है, क्योंकि हम लोग जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट करने की। जैसे आप आज एक स्कीम देख रहे हैं। इसके अलावा हम लोग इनोवेशन काउंसिल, इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल में बहुत सक्रियता से भाग ले रहे हैं। पिछले 3 सालों से हमें अच्छे स्टार सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं, 3.5 स्टार, और जो एक रूरल कॉलेज होने के बावजूद इस तरह की सफलता प्राप्त करने में निश्चित रूप से हमारे अध्यापकों का योगदान रहा होगा और आगे भी वो लोग इस तरह के काम करते रहेंगे। तो वो सर्टिफिकेट प्राप्त करना एक जिम्मेदारी का फिर से एहसास दिलाता है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे कॉलेज में इनोवेशन के मामले में हमारे कॉलेज
जो माननीय मोदी जी की इच्छा है कि हम टॉप 5 नेशंस में शामिल हो जाएं आने वाले 2-3 सालों में, तो उसमें 0.00, 0.00 या 0.001 कुछ भी परसेंटेज योगदान हम अपने महाविद्यालय कर सकें, तो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य होगा। और मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हमारे महाविद्यालय में जो गाँव के बच्चे आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अभाव में ही प्रभाव उत्पन्न होता है, और दूसरी बात जो कोरोना के परिप्रेक्ष्य पे भी कहते हैं कि जहाँ समस्या होगी वहाँ पे निदान खोजना जरूरी होता है। और तो इस तरह की चीजों को हम लोग बहुत अच्छे तरह से महसूस करते हैं। गाँव का जो छात्र छात्राएं होती हैं तो अभाव उनको इनोवेशन की प्रवृत्ति का हम लोग पूरा उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कारण से हम लोग IISc में इनोवेशन काउंसिल में अच्छी पहचान अभी बना चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पे। और साथ साथ में हमारा कॉलेज इस मामले में भी यूनिक है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राजकीय महाविद्यालय है जिसको DBT स्टार कॉलेज स्कीम के अंतर्गत स्टार कॉलेज का दर्जा दिया गया है पिछले साल। उसका भी 1 वर्ष समाप्त होने वाला है। मैं इस मंच के माध्यम से DM मैडम को आज ही से उसके लिए इनवाइट कर रहा हूँ, फॉर्मल इन्विटेशन बाद में होगा। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग के कार्यक्रम कॉलेज के विकास में हमारे DM महोदय, हमारे SP साहब भी बहुत अच्छे हेल्पिंग नेचर के हमारे पास में है, और हम लोग कॉलेज में किसी तरह के अनुशासन की समस्या नहीं होती है, और इसी वजह से हम लोग उस कार्य करने में सफल होते हैं। मैं एक बार फिर से शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा, हमारे कॉलेज को सम्मानित करने का सर्टिफिकेट दिलाने के लिए आपने प्रयास किया। और साथ में मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में जो भी समाज के साथ विकास के जो कार्यक्रम आएंगे उससे हमको जरूर अवगत कराएं अपने मंत्रालय के माध्यम से, जिससे हम अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्र छात्राओं को जोड़ सकें और उनमें भी एहसास दिला सकते हैं कि वो भी इस देश के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। सिर्फ अपने लिए कुछ कार्य करें, वो देश के विकास के लिए अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं किरण मैडम आपका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Dongre sir. And I now express my heartfelt gratitude to DM ma'am on behalf of Dr. W.G. Prasanna Kumar, Chairman MGNCRE, and all the guests that have joined us today for the event. Ma'am, a great thanks for being a part of this award ceremony. We are grateful that you took out time from your very busy schedule to be here with us today. And ma'am, myself and all the guests again present here today consider it a matter of great honor to be associated with you. Once again, ma'am, a great thanks for joining us. And I hope this association, ma'am, will continue from here. Thank you so much, dear ma'am. Thank you, Kiran, and thank you everyone for having me here in the program. Thank you once again. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a great day, ma'am. Thank you so much. Thank you. Wish you the same. तो जैसा कि आप सबने देखा, DM मैम बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी हमसे थोड़े से टाइम के लिए जुड़ी हैं, और मैं समझती हूँ मोटिवेट करने के लिए उनका इतना सा टाइम भी जो है हमारे लिए पर्याप्त है। मैं फिर से एक बार उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ इस मंच की ओर से। और चले अब हम जो है अपनी वर्कशॉप और जो हमारा आज का इवेंट है उसके दूसरे हिस्से में हम जो है प्रवेश कर चुके हैं। इस हिस्से में मैं चाहूंगी कि अगर जब भी मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूं और आपसे स्लाइड शेयर करूं और आपके मन में कोई प्रश्न या विचार आए तो प्लीज आप उसे लिख लीजिएगा। जैसे ही मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होगी हम उस विषय पे जो है और जो भी आपका प्रश्न है उस पर चर्चा अवश्य करेंगे। तो मैं जो है अब आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। रश्मि मैम, मुझे आप बता दीजिएगा। मैम, सॉरी इंटरप्ट यू अगेन। जी जी। मैं आपके जो पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें मैं 3 नाम देख पा रही हूँ बिकॉज बहुत देर से उनका हैंड रेज है। तो बिफोर योर प्रेजेंटेशन आप उनकी जो भी क्वेरी है वो ले लीजिए और जरूर देन वी मूव अहेड टू प्रेजेंटेशन। हाँ जी, थैंक यू सो मच सुप्रिया मैम।
हाँ जी, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो मेरी प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर व्यूज। आप प्लीज एक एक करके जो है अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ मैं आशीष वर्मा जी को देख पा रही हूँ। आशीष वर्मा जी का हैंड रेज है। एसके उपाध्याय जी हैं और रविंद्र कुमार जी हैं। मैं आप तीनों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जी रविंद्र जी ने कैमरा ऑन किया। सर प्लीज आप अपने विचार बताइए। हैंड ओवर टू यू। सबसे पहले सभी का नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित केएनपीजी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोंगरे सर, कार्यक्रम में उपस्थित जिला भदोही की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय मैडम और कार्यक्रम की संचालिका किरण मैम और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं केएनपीजी कॉलेज में लगभग 7 साल रहा। वहाँ पर हमने उस कॉलेज के उतार चढ़ाव बहुत देखे। प्रिंसिपल कई आए कई चले गए, लेकिन वर्तमान प्रिंसिपल डॉक्टर पीएन डोंगरे, मैंने इतनी विलक्षण प्रतिभा के प्रिंसिपल, मैं वर्तमान कॉलेज की भी बात कर रहा हूँ जहाँ मैं इस समय कार्यरत हूँ, कि मैं इतना विलक्षण प्रतिभा का कोई प्रिंसिपल अभी तक नहीं देख पाया कि आपने कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब आप ऐसा लगता है कि रात दिन सर्च करते हैं कि कोई प्रोजेक्ट, कोई इनोवेशन से संबंधित इस तरह के कोई भी कार्यक्रम जो हमारे बच्चों के लिए लाभदायक हो, हमारे महाविद्यालय के लिए हो और हमारे देश को आगे ले जाने के लिए जो कार्य हो सकते हैं, ऐसे कार्यक्रमों को आप ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं। और ना केवल लाना बल्कि उसको इम्प्लीमेंट कराना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आपने वो सब कराया। आपके सानिध्य में रह करके हमने जितना सीखा तो उसका लाभ आज हम दूसरे महाविद्यालयों में आकर के करा रहे हैं। हमने यहाँ आकर के आप ही से सीखा था कि इनोवेशन काउंसिल भी कोई संस्था होती है, उसका सेंटर हम कॉलेजों में ला सकते हैं। तो मैंने अपने यहाँ आकर के उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया है, उसको आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन सब सीखा मैंने आप ही से है। डिस्ट्रिक्ट भदोही में प्रशासनिक अधिकारी चाहे डीएम सर रहे हों, विशाख जी के टाइम में हमने डिस्ट्रिक्ट भदोही को लेकर के बहुत योजनाएं बनाई थी कि हम किस तरह से डिस्ट्रिक्ट भदोही का उत्थान करें या यहाँ पर विकास के कार्य करें। तो उस समय विशाख जी ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समाप्त करूंगा सर। तो डीएम विशाख जी ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट भदोही की जो वॉल्स हैं, चाहे चौराहे हैं या ग्रामीण क्षेत्र है, अगर उन वॉल्स को हम पेंटिंग करा दें तो ऐसा लगेगा कि हम डिस्ट्रिक्ट भदोही के लिए कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने आवास पे बुलाकर, कार्यालय पे बुलाकर, प्रतिदिन शाम के समय वो डेली मुझे बुलाया करते थे और हमारी यही योजना होती थी आज हमें आगे क्या करना है। और उनकी इतनी नॉलेज मैंने देखा कि चित्रकला का मास्टर मैं हूँ, लेकिन उन्होंने एक एक रंग के बारे में उनको नॉलेज थी कि कहाँ कौन सा रंग लगाने से चित्र उभर के आ जाएगा। तो जब मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में एक स्वच्छता से संबंधित एक वॉल पेंटिंग बना रहा था, जो आज भी बनी हुई है, गांधी जी का उसमें चित्र है, तो वहाँ पर उन्होंने एक एक उसकी जो बारीकियां थी उस चित्र की, एक एक बारीकी को देखा और ये बताया कि आप किस तरह का एक क्रिएटिव पोर्ट्रेट बनाए गांधी जी का, रियलिस्टिक ना बना के क्रिएटिव बनाए। तो इस तरह की। दूसरा, मैं रोवर्स प्रभारी भी वहाँ पे रहा। रोवर्स प्रभारी के होने के नाते हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाए, न केवल डिस्ट्रिक्ट मतलब केएनपीजी या ज्ञानपुर के अंदर, बल्कि सीतामढ़ी क्षेत्र में भी बच्चों को ले जा करके वहाँ भी हमने स्वच्छता अभियान चलाया, जहाँ पर कि जो माननीय प्रभारी मंत्री राजेंद्र निषाद जी हैं, तो उनके साथ में रह करके भी हमने ये कार्य किया। इसके अलावा हम बनारस तक भी गए। अब बहुत सारे इवेंट हमने बनारस में भी जाकर किए। तो जहाँ भी हमें अवसर मिला तो वहाँ पे जाकर के हमने बच्चों को साथ लेकर के ये कार्यक्रम कराए। अभी जैसे कि कोविड महामारी के कारण से हर व्यक्ति वहाँ त्रस्त है,
तो पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। तो ऐसे में हमारे बच्चों ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत और एक सेवा भाव के लेकर के मास्क बनाए। मास्क बनाने के बाद में उनको वितरित भी कराया। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट भदोही में स्काउट गाइड की जिला संस्था है, उनको भी हमने मास्क बना करके उनको सौंपे हैं। और इसके अलावा जैसे वहाँ कोई प्रोग्राम्स होते थे, रामलीला का प्रोग्राम है, दशहरा या इस तरह के, तो वहाँ हमने पानी का स्टॉल लगा दिया। फिर हम लोगों ने गांव-गांव जा कर के, चाहे इनोवेशन काउंसिल के तहत हमने गांव में जाकर भ्रमण किया, वहाँ की समस्याएं थी जो लोगों से पूछा कि वहाँ पे जो समस्याएं हैं और उनका निराकरण हम किस तरह से कर सकते हैं। तो वो जो उन्होंने सुझाव दिए उनको हम लोगों ने नोट किया, और नोट करने के बाद फिर हमने ये योजना बनाई कि हम प्रधान से मिलेंगे। जैसे कूड़ा कचरा है उसको कोई जगह ऐसी मिल जाए कि वहाँ डंप कर दिया जाए, और जैसे मान लीजिए गोबर ही है तो 1 साल के बाद में 2 साल में जाकर के वो खाद बन जाए और किसी काम आ जाए। तो इस तरह की जो समस्याएं थी गाँवों में वो भी हमने जानी, और हमारी यही योजना आगे भी थी कि इसको हम और आगे बढ़ा लें, चाहे वो प्लांटेशन से संबंधित हो या मतलब चारों तरफ हरियाली हो जाए। तो इसको लेकर के दूसरा, पानी का जो मिसयूज होता है वो मिसयूज ना हो, उसको भी हम कैसे पानी का जो वेस्टेज जाता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इस पे भी हम लोगों ने वहाँ पे काम किया। तो इस तरह के प्रोग्राम्स में हमने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया, और ये भी रविंद्र संभव सर, हो पाया मैं समझ हमारे सकती प्राचार्य हूँ डॉक्टर PM डोगरे जी के कारण। उपलब्धियां जो है, जी 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 जी, मैं जी रविंद्र मैम। सर समझ सकती हूँ, आपकी तो बहुत ज्यादा उपलब्धियां हैं सर। जी मैम। तो जी बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप कैसे जो है ग्राउंड लेवल पे जी जाकर जो है आपने इतना सब काम किया। एंड जी मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आपके जो प्रिंसिपल हैं डोंगरे सर, जी वो बहुत ही एक मोटिवेशनल फैक्टर रहे होंगे जिन्होंने आपको बिल्कुल इतना मैम, इंस्पायर बिल्कुल। किया। जी जी, मैम। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे उपाध्याय सर ने भी अपना हैंड रेज किया है। तो उपाध्याय मैम, सर, आप किरण कुछ मैम, कहना चाहेंगे? किरण मैम, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में। जी मैम, जी। मैं चाहती हूँ कि पहले आप अपनी वर्कशॉप जो है कर लें, हाँ जी, क्वेश्चन हम बाद में ले लेते हैं मैम। जी जी जी। जी मैम। मेरा भी यही मत था शुरू में, जी। लेकिन बहुत उत्सुक लग रहे थे डॉक्टर रविंद्र अपने विचार रखने के लिए। क्योंकि मैम सर जो है जी। इस टीम के मेंबर रहे हैं, इसलिए वो ओके, ज्यादा। तभी हाँ, जी 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 मैम। जी आप पहले वर्कशॉप अपनी कंटिन्यू कर जी जी लीजिए। जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव दिया मैम आपने। तो मैं अभी आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई भी अगर आपके मन में विचार आता है, प्रश्न आता है, तो आप उसे लिख लीजिएगा। वर्कशॉप खत्म होने के बाद जो है हम एक छोटा सा इंटरेक्शन सेशन करेंगे, और फिर जो है हम स्वच्छता के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन जो है अब आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। जी, आप लोग क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ मैम, आपकी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। जी, मैं इसे अभी फुल स्क्रीन कर रही हूँ। जी, तो आज का जो हमारा वर्कशॉप है ये स्वच्छ कैंपस के ऊपर है। स्वच्छ कैंपस अगर हिंदी में कहें तो स्वच्छ परिसर। जी, तो अब मैं अपनी अगली स्लाइड पे जाती हूँ। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये बताना चाहती हूँ कि स्वच्छता हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम भारतीयों के लिए ये कोई नई बात है ही नहीं। एक्चुअली हमारी सभ्यता ही ऐसी है कि हम हमेशा से ही स्वच्छता से जुड़े रहे हैं। देखिए, जब हम स्कूल में थे, छोटे थे, तो हमें अक्सर कहा जाता था क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी जो साफ सफाई है वो भगवान का ही एक रूप है। और ये भी कहा जाता था कि जहाँ साफ सफाई है वहां पर जो है ईश्वर का वास होता है। आप देखिए, पतंजलि, जो महर्षि पतंजलि हुए हैं और उन्होंने योग सूत्र लिखे, उन्होंने भी इस विषय में बहुत ज्यादा जो है विस्तृत रूप में बताया है, उसको एक्सप्लेन किया है। उन्हीं के जो योग सूत्र हैं उनमें से जो है मैंने एक ये टर्म लिया है, सभयंत्र सूची, यानी इसका मतलब ये है, ये एक संस्कृत का वर्ड है और इसका मतलब है कि सब जगह जो है वो स्वच्छता हो, सफाई हो।
और जब सब जगह स्वच्छता की उन्होंने बात की, तो मैं समझती हूँ उन्होंने रेफरेंस इस बात को भी दिया कि सिर्फ बाहर ही स्वच्छ ना हो, हमारा जो अंतर्मन है वो भी स्वच्छ हो, यानी हम दिल से भी साफ हो और हमारा जो पर्यावरण, एनवायरनमेंट और यहाँ जहाँ भी हम रहते हैं वहां पर भी स्वच्छता हो। फिर देखिए हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, कुरान है, बाइबल है, गुरबानी है। देखिए बाइबल में तो जीसस क्राइस्ट ने यहाँ तक कहा है, कम टू मी विद अ प्योर सोल। अगर आपकी आत्मा बिल्कुल साफ है तब आप मेरे पास आइए। कुरान में भी देखिए ये लिखा है कि वजू करना है, तभी जो है आप नमाज करने बैठेंगे। गुरबानी में भी जो है इसका रेफरेंस है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा, स्वच्छता जो है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे लिए। आज भी जो है हमारे गांव में आप देखिए हमारे जितने जलाशय हैं उनकी पूजा होती है, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, इनकी पूजा होती है। हमारे आज भी जो किसान हैं, खेती जो है करने से पहले धरती की पूजा करते हैं, धरती को हम माँ मानते हैं। हम आसमान की पूजा करते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि जो वर्षा है वहां से आ रही है, विच इज लाइफ गिविंग। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए हुआ क्या था, कहीं पे बीच में हम अपनी सभ्यता से जो है बिछड़ गए। आप देखिए श्री कृष्ण भगवान ने इतने युगों पहले हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा। वो इसलिए नहीं था कि हमारे मन में कहीं अंधविश्वास पैदा हो, वो इसलिए था कि हम थैंकफुल हों अपने आसपास में जो हमारे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, हमारी धरती है, कि हम उनको नम्न करें और उनको धन्यवाद करें कि वो जो है हमें जीवन प्रदान करते हैं। बुद्धा जी ने जो उनका 8 फोल्ड पाथ है, बुद्धा जी को विष्णु भगवान का इनकारनेशन भी माना जाता है। उस 8 फोल्ड पाथ में भी उन्होंने कहा है कि आपकी आत्मा भी शुद्ध होनी चाहिए और आपका आसपास का एरिया भी। तो मैं ये कह रही थी कि बीच में क्या हुआ, कहाँ हम जो है वो छूट गए और फिर कहाँ हमें दोबारा से इस स्वच्छता को है अभियान के तौर पर जो है हम सबके सामने लाना पड़ा। हुआ ये कि काफी साल अंग्रेजों का शासन रहा और अभी भी हम जो है बहुत तरीके से वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में जो है हम आ गए। वेस्टर्न कल्चर में जो वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है, वो लोग ये समझते हैं अरे भारतीय तो नदी की पूजा करते हैं, भारतीय तो गंगा की पूजा करते हैं, ये अंधविश्वासी हैं। बल्कि ये अंधविश्वास नहीं था, आप ये समझिए कि एक तरीका था हमारे बुजुर्गों का हमें बताने के लिए कि ये जो पानी है, ये जलाशय हैं, ये जो जमीन है, ये जो आसमान है, ये जो हमें लाइफ देते हैं, जीवन देते हैं, हमें जो है इनका आभार व्यक्त करना चाहिए। तो जब ये कॉन्सेप्ट आ गया कि हम अंधविश्वासी हैं, तो शायद हम जो है अपने आसपास, अपनी एनवायरनमेंट और उसमें जुड़ी हर चीज का जो है सम्मान करना कहीं भूल गए। और इसीलिए जो है फिर हमें ये स्वच्छता को एक अभियान के तौर पे जो है हमें इसे दोबारा से आप लोगों के बीच में लाना पड़ा। तो अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। आज की जो ये वर्कशॉप है ये स्वच्छ कैंपस मैनुअल के बारे में है। अगर आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़े हैं तो वहां पर आपने देखा होगा हमने हिंदी और अंग्रेजी में जो है ये जो स्वच्छ कैंपस मैनुअल है ये आप लोगों के साथ शेयर किया है। पहले स्वच्छ मैनुअल कैंपस के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए मैनुअल क्या होता है, जब आप कोई गाड़ी लेते हैं तो आपको उसके साथ एक मैनुअल मिलता है ना। उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको इस गाड़ी का रखरखाव कैसे करना है, कौन से टायर में कितनी हवा होनी चाहिए, सर्विसिंग कब करानी है, इंश्योरेंस कब करानी है ना। तो मैं समझती हूँ ये जो मैनुअल है वो स्वच्छता की गाड़ी को आगे ले जाने के लिए एक मैनुअल है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन ने इस मैनुअल को तैयार किया है। इस मैनुअल को तैयार करने के लिए पूरा 1 वर्ष का समय लगा था और इसमें जो टीम जुड़ी थी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसके साथ जुड़े थे। इसके साथ हमने और इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस, इवन वाइस चांसलर्स को इस मैनुअल को बनाने में जो है मदद करने के लिए अपने साथ जोड़ा। साथ ही हमने जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उनको भी हमने अपने साथ जोड़ा और पूरा 1 वर्ष का समय जो लगा
था इस मैनुअल को बनाने के लिए। ये जो मैनुअल है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे उस समय के जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने जो है इस मैनुअल का विमोचन किया था, इनॉग्रेशन की थी गुरु पूर्णिमा के दिन 2018 में। प्रयत्न यही था कि इस मैनुअल के जरिए हम जितने भी हमारे देश में हायर लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो है स्वच्छता अभियान में जोड़ें। और उन्हें स्वच्छता अभियान में क्यों जोड़ें, इसका जिक्र मैं आगे की स्लाइड्स में आपके साथ करूंगी। जी, तो अब सबसे पहले इस पे आते हैं कि आखिर ये स्वच्छ कैंपस मैनुअल है किस लिए, है ना। ये मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में जो है इस मैनुअल के बारे में बताऊंगी, और स्वच्छता एक्शन प्लान को आपको कैसे आगे लेकर जाना है वो भी मैं आज आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताऊंगी। क्योंकि ये जो मैनुअल है ये 100 पेज का मैनुअल है, और इसमें बहुत ही विस्तृत जानकारी है, बहुत ही ज्यादा जो है वास्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि आप जो है अपने कैंपस में स्वच्छता आंदोलन और स्वच्छता अभियान को कैसे लागू कर सकते हैं, है ना। तो ये मैं आपके साथ संक्षिप्त रूप में उसका जो है आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले ये मैनुअल हमने इसलिए बनाया था क्योंकि हम ये समझते थे कि जहाँ पर ओनरशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ ऑटोमेटिकली स्वच्छता हो जाती है। मान के चलिए कि अगर आप एक छोटे बच्चे को भी कहते हैं कि बेटा ये कमरा आज से आपका है और आप इसे स्वच्छ रखेंगे, तो वो जाहिर सी बात है उस रूम को, उस कमरे को साफ रखने की पूरी कोशिश करेगा। तो ऐसे ही जो है हमने इसी से वी टुक अ क्यू फ्रॉम दिस, इसी से जो हमने प्रेरणा लेकर के ये तय करा कि हमें जो है अब हायर लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और इवन स्कूल्स को जो है उनके कैंपस की पूरी जवाबदारी दे देनी है स्वच्छता के लिए। फिर हम ये भी चाहते हैं कि इस मैनुअल के जरिए जो आप जो भी स्वच्छता का काम करें अपने इंस्टीट्यूशन में, उसको जो है आप पूरा रिकॉर्ड करें, लिखित रूप में भी, वीडियो के रूप में भी, पिक्चर्स के रूप में भी। हमारा ये भी लक्ष्य है कि हम कैंपस में जो है सफाई को प्रमोट करें, प्रमोटिंग क्लीनलीनेस। तो इसलिए भी हमने ये मैनुअल बनाया। आप देखिए, जो कैंपस है वो एक छोटा सा गांव होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसमें पढ़ने आते हैं देश के दूर दराज के एरिया से, और लगभग आप देखिए हमारे देश में 6,55,000 जो हैं वो गांव हैं। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इन्हीं गांव से आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी आप स्वच्छता अभियान जो है अपने कैंपस में शुरू करें, हम ये चाहते हैं जैसे डीएम मैम ने भी कहा, हैबिट फॉर्मेशन जो है इन बच्चों में हो। अब देखिए, आदत जब बनेगी आपके स्टूडेंट्स में स्वच्छता की, और आपके कैंपस में रहने वाले लोगों की, और आपके कैंपस से जुड़े हर उस व्यक्ति की, जब ये आदत बन जाएगी साफ रहने की, तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि आपका एक स्टूडेंट है, वो किसी गांव से आया है, उसने 3 साल जो है आपके कैंपस में रहकर एजुकेशनली वो पढ़ा। अब हमने उसको स्वच्छता की आदत जो है अपनी ओर से डाल दी, क्योंकि हमने उसको एक स्वच्छ कैंपस दिया, सुंदर टॉयलेट्स दिए, अच्छा हॉस्टल दिया, तो उसे स्वच्छता की आदत पड़ गई। अब यही जो एक स्टूडेंट है, मान लीजिए ये अपने गांव गया, तो आप सोचिए ये बदलाव का कितना अहम हिस्सा बन जाएगा यही एक स्टूडेंट, है ना। पहले ये अपने घर वालों को समझा सकता है स्वच्छता के लिए, आगे बढ़ के अपने नेबरहुड में, अपने आस पड़ोस में स्वच्छता के लिए समझा सकता है। और ऐसे ही जो है हम ये कल्पना कर रहे हैं कि ये स्वच्छता की लहर उस एक विद्यार्थी से बढ़कर पूरे जो है गांव में फैल जाए। तो ऐसा हमारा ध्येय भी है और सपना भी है। तो इसीलिए जो है ये स्वच्छ कैंपस मैनुअल जो है हमने बनाया है। और एक अहम बात अगली स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपसे करूंगी कि देखिए, कैंपस में स्वच्छ कैंपस मैनुअल की जरूरत किस लिए है। हर कैंपस में अलग तरह का वेस्ट होता है। वेस्ट मैनेजमेंट भी जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कचरे का ढेर जो है वो इकट्ठा हो जाता है। डस्टबिन है लेकिन कचरा डस्टबिन के अंदर नहीं है, डस्टबिन के बाहर है। तो ऐसा हमारे कैंपस में ना हो, एक बहुत अच्छा जो वेस्ट मैनेजमेंट हो वो हो हमारे कैंपस में। इसके लिए भी जो है ये मैनुअल उपयोगी रहेगा।
तो हम अपनी अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। देखिए, आप सब लोग सोच रहे होंगे, बहुत विचार ऐसे सबके मन में आता है, क्योंकि बहुत से प्राचार्य हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं दूसरे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस के, कि ये जो इंस्टीट्यूशन है काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, आखिर इसको ये अवार्ड मिला क्यों, और ये कैसे मिला, है ना, और ये भी कि अगले साल हमें ये अवार्ड कैसे मिल सकता है। तो उसी के लिए मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए, जब हमने स्वच्छता अभियान MGNCRE ने शुरू किया था, तो हमने इसको स्टेट लेवल पे शुरू किया था 2014 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने यूनिवर्सिटीज जो थी उनसे रिकमेंडेशन लिया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको लगता है स्वच्छता के सारे मापदंडों पे खरे उतरते हैं, ठीक है। तो ये तो पहले साल का था। दूसरे साल पे हम जो है ये स्वच्छता अभियान को बढ़ाकर लेकर आए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसमें हमने क्या किया, मेरी संस्था MGNCRE ने हमने क्या करा, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराए कॉलेजेस में और हायर लेवल इंस्टीट्यूशंस में। और इस प्रोग्राम के तहत जो हमारे साथ कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस जुड़े, हमने उनसे कहा कि आप जो है, हम आपके साथ परफॉर्मा शेयर कर रहे हैं, उसको भरिए, और फिर हम जो है ये देखेंगे कि आपको हम ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित कैसे करें, है ना। तो ये जो है हमारी रणनीति थी पहले साल की और दूसरे साल की। इस साल हमने क्या सोचा है, मैंने जैसे आपसे कहा कि हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें सारे आपके भदोही डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्रिंसिपल्स और टीचर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस साल हमारी जो रणनीति है वो यही है कि हम जो है इंस्टीट्यूशंस के साथ अब रिकमेंडेशन के बेसिस पे नहीं, डायरेक्ट लिंक जो है आपके साथ स्थापित करें। तो इसीलिए ये अवार्ड सेरेमनी है और इसमें हमने आप सबको बुलाया, और इसीलिए ये वर्कशॉप भी है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट आपसे संपर्क करेंगे, आपके इंस्टीट्यूशंस में हम वर्कशॉप करेंगे जहां से आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हमसे जुड़ेंगे, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे जुड़ेंगे। और ये जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम है और ये जो वर्कशॉप्स हैं, हम लोग सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट, एफिलिएटेड और नॉन एफिलिएटेड जितनी भी हायर लेवल इंस्टीट्यूशन हैं, हम उनको जो है इस साल अपने साथ जोड़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने जब स्वच्छता अभियान अपने कैंपस में जो है उसका इनॉग्रेशन करना है, उसके बारे में सोचना है कि हम उसको कैसे लागू करें, तो मैं यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से आपको कोर्स ऑफ एक्शन समझा रही हूँ, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए, जब भी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि मुश्किल कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं, है ना। और जब हमने प्लान कर लिया कि हम उसे इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं एक्शन की ओर। जब हमने एक्शन पूरा कर लिया तो हम जो है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है, आगे भी अगर हमें ऐसी कोई परेशानी आएगी तो हम उसका हल ठीक इसी तरीके से निकालेंगे। तो स्वच्छता के लिए जो है आपको कोर्स ऑफ एक्शन यही है। सबसे पहले आपने अपने इंस्टीट्यूशंस में देखना है कि कहाँ कहाँ पर आपको लगता है जो अहम मुद्दे हैं स्वच्छता को लेकर। मान लीजिए डस्टबिन नहीं है, मान लीजिए गीला कचरा डिस्पोज करने के लिए और सूखा कचरा डिस्पोज करने के लिए डस्टबिन नहीं है। तो कोई भी जो आपकी स्वच्छता से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पहले आप उसको ढूंढेंगे, उसको सॉल्व कैसे किया जाए उसके लिए आप प्लानिंग करेंगे। प्लान कर लिया तो एक्शन, और एक्शन के बाद रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग पे मैं जोर इसलिए देना चाहूंगी क्योंकि आप रिकॉर्डिंग करेंगे तभी तो है आप हमारा परफॉर्मा भर सकेंगे, और तभी तो है मैं चाहती हूँ कि अगले साल जब मैं भदोही डिस्ट्रिक्ट आऊँ तो एक नहीं 2 या 3 इंस्टीट्यूशंस को ये जो है अवार्ड मिले। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। मैंने एक्शन प्लान की बात करी, तो देखिए एक्शन प्लान में ये मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। इसमें कुछ नहीं करना है, मान के चलिए बहुत आसान है। आपको पहले सर्वे करना है अपने इंस्टीट्यूशन में कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, एरियाज कौन से हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो है निगरानी की ज़रूरत है। उसके बाद आपको टीम बनानी है, स्वच्छ टीम, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपको जो है, जब आपने टीम्स बना ली तो आपने स्टूडेंट्स को जो है उन टीम्स के साथ जोड़ना है। टीम्स बनाने के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं है।
देखिए आपके इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल हैं या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या कर सकते हैं, चुनिंदा फैकल्टी मेंबर्स, जैसे रविंद्र सर हैं, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं स्वच्छता को लेके, रश्मि मैम हैं, तो ऐसे फैकल्टी मेंबर्स को लेके आप जो है डिफरेंट टीम्स बना सकते हैं। उन टीम्स के साथ फिर आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को जोड़ सकते हैं। जब आपने बच्चों को उन टीम्स में शामिल किया तो बहुत जरूरी हो जाता है उनकी ओरिएंटेशन करना। ओरिएंटेशन यानी उनको ये बताना कि आपको इस टीम में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप ये काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कहाँ पर हमें इमीडिएट एक्शन करना है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है एरिया, कि कौन सा एरिया है जहां पर मान लीजिए हमारे कैंपस में जो है वॉशरूम्स की हालत बहुत खराब है और वॉशरूम्स पूरे जो है वो चेंज करने, तो हम जो है वो उसको की एरिया, टारगेट एरिया मानकर चले और हम जो है उस पर काम करें। देखिए ये जो मैन्युअल है ये आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपको अपने परिसर में जो आप चाहें वो पहले करने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग इंटरवेंशंस हैं। देखिए जब आपने प्लान करा तो ऑब्वियसली अब प्लानिंग को आपने हिस्सों में बांटा है ना, तो जैसे जैसे अकम्प्लिश होता जाता है, जैसे जैसे आपने मान लीजिए पहला मान के चलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, ठीक है। जो कचरा है हमारे इंस्टीट्यूशंस में कई तरह का होता है, ठीक है। मैंने जैसे कहा गीला कचरा है, सूखा कचरा है ना, और उसके बाद बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आप देखिए रद्दी होती है, पेपर्स होते हैं, हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी बहुत है, तो ई जो है ई कचरा जिसको हम कहते हैं वो भी हमारे पास बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। पुराने बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, पुराने एसी हैं, इस तरह का भी बहुत ज्यादा जो कचरा हमारे इंस्टीट्यूशंस में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब वहां पर हमें इस कचरे को डिस्पोज करने के लिए प्लानिंग इंटरवेंशन करनी। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इस प्लानिंग इंटरवेंशन में आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसान है। पहले तो कचरे को अलग कीजिए, फिर उसमें आप देखिए कि इसमें कौन सा कचरा है जो रिसाइकल हो जाता है, कौन सा कचरा है जिसे हम इसको रीयूज कर सकते हैं, कौन सा कचरा है जिसे हम री इन्वेंट कर सकते हैं किसी और तरीके से। देखिए मैं फौज से हूँ और हमारा फौजी कैंप जो है हमेशा आप भारतवर्ष में कहीं भी चले जाएंगे अक्सर साफ रहते हैं, अक्सर तो नहीं मैं कहना चाहूंगी साफ ही रहते हैं। तो आप देखेंगे चिल्ड्रंस पार्क में जगह जगह पर जो पुराने टायर्स है ना उनका जो है प्लांटर्स बना के रख दिए जाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है वेस्ट मैनेजमेंट का। तो एक मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है कि आप प्लानिंग कैसे कर सकते हैं किसी भी जो पॉलिसीज मैं अभी आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी उनको लेकर, है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ कैंपस। मैंने जैसे आपसे पहले कहा जब हमने प्लानिंग कर ली, हमने टीम बना ली, स्टूडेंट्स को जोड़ लिया, एक्शन प्लान डिसाइड कर लिया, अब हमें कुछ नहीं करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन में मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि जब भी इम्प्लीमेंटेशन की बात आए तब जो है एक टाइम प्लान होना चाहिए कि ये वाला प्रोजेक्ट जो है हम इतने दिन में कंप्लीट करेंगे और ये कंप्लीट होने के बाद ही जो है हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आएंगे। साथ ही साथ हमें एजुकेशन और अवेयरनेस तो करना ही है पूरे कैंपस में। कैसे कर सकते हैं, देखिए नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, कोई कंपटीशन कर सकते हैं पोस्टर मेकिंग का या पोइट्री का। तो इस तरह से क्या है बच्चों को जब हम स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे इस तरीके से तो वो और ज्यादा जो है इच्छुक होंगे स्वच्छता के साथ जुड़ने के लिए। और हम क्या कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए हर कॉलेज का ट्विटर अकाउंट होता है, फेसबुक पेज है, वेबसाइट है, इसमें आपने स्वच्छता को लेकर जो कुछ करा है वो आप शेयर करेंगे। और ना सिर्फ जो कुछ किया है उसमें आप क्या करेंगे, जो आप प्लान कर रहे हैं वो भी शेयर कीजिए। जो आपने एक्शन प्लान में प्रोजेक्ट जो कंप्लीट कर लिए हैं, मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट के सेकंड फेज में है, वो भी आप शेयर करेंगे। मैं शेयर करने पे इतना जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब भी सोशल मीडिया पे कोई अन्य इंस्टीट्यूशन या कॉलेज जो है आपकी पोस्ट देखेगा तो हम चाहते हैं कि वो भी इंस्पायर हो, मोटिवेट हो और वो भी ये मान के चले कि अरे अच्छा इस कॉलेज में ये सब हो रहा है तो चलिए हम भी जो है अपने कॉलेज में इसकी शुरुआत करें। जी आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। आप सबको समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ।
रश्मि मैम एक बार उस तरफ से आप हाँ आ जाए तो हम लोग को समझ में आ रहा है मैम कि अब हम लोग को आगे क्या करना है और किस तरह से करना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब जो हमने एक्शन प्लान बनाया उसको अचीव कैसे करना है ना। देखिए, अब सिर्फ जागरूकता तक रुक जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। अभियान को जो है पूरा सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें जो है, जो हमारा लक्ष्य है उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, ये हमें एनालिसिस और एक्शन प्लान बनाना है। उसके बाद हमें रिकॉर्ड कीपिंग करनी है कि हमने जो जो कर लिया है उसका रिकॉर्ड रखना है, जो आगे हमें करना है उसका भी रिकॉर्ड रखना है। ये उतना ही आसान है जितना कि हम अपना निजी जो रोज का पर्सनल प्लानर बनाते हैं ना रात को सोने से पहले, कि कल सुबह मुझे ये करना है, ये मेरी प्रायोरिटीज हैं। तो ये उसी तरह की जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग होगी। सुपरविजन पे हमें पूरा ध्यान देना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो एक्शन प्लान है हमने लागू तो कर दिया, लेकिन कहीं पर जो है हम पीछे छूट गए, या कहीं पर जो है हम उस प्लान को जो है बीच में ही छोड़ गए। देखिए, सुपरविजन की बात आई है तो मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करूंगी। बहुत से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वृक्षारोपण करते हैं, है ना, ट्री प्लांटेशन। तो पेड़ तो लग जाते हैं और फोटो वोटो हो जाती है, सेल्फी भी खिंच जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सुपरविजन नहीं हो पाती। ये ध्यान नहीं दिया जाता कि वो मवेशी जो हैं उनको नष्ट तो नहीं कर रहे, उनको पानी समय से मिल रहा है या खाद समय से मिल रही है कि नहीं। तो हम जो भी जो है अपना एक्शन प्लान बनाएंगे उसमें हम सुपरविजन के साथ ही जो है उसको आगे लेके जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक सुझाव है, स्टूडेंट स्वच्छ केंद्र। ये एक जो है हम अपने कैंपस में स्टूडेंट स्वच्छ केंद्र बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आप किसी स्टूडेंट को ही जो है इसमें उसका चयन कर सकते हैं, चाहे तो एक फैकल्टी मेंबर भी उसमें जुड़ सकता है। और ये स्वच्छ केंद्र ऐसा रहेगा जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि वो कहाँ पर वॉलंटियर करना चाहते हैं। वो आपके साथ आके शेयर कर सकते हैं कि हमें स्वच्छता को लेकर ये प्रॉब्लम आ रही है, पानी के नल ठीक से बंद नहीं हो रहे हैं, या फिर डाइनिंग हॉल में जो है कचरे का डिस्पर्सल जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ये जो स्टूडेंट स्वच्छ केंद्र होगा ये एक्चुअली एक इनपुट केंद्र होगा। जो भी इंफॉर्मेशन स्वच्छता को लेके आपके स्टूडेंट्स आपको देना चाहते हैं वो जो है आपको इस स्टूडेंट स्वच्छ केंद्र से मिलेगी। तो इसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि आज वहां पर कोई फैकल्टी मेंबर है और कोई स्टूडेंट है और फिर उसके बाद उस स्वच्छ केंद्र में जो है वो ताला लग गया, ऐसा नहीं होना है। कोशिश यही करनी है कि जो भी हम करें वो जो है एक मिसाल बने, पहली बात। और दूसरा ये कि वो जो है कंटिन्यूएशन में रहे, ये नहीं कि बस आज कर दिया और कल जो है उसके बारे में भूल जाए। ठीक है, फिर रिपोर्टिंग है। आप देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था स्टूडेंट्स की टीम बन सकती है, तो वो यही टीम्स जो हैं उसमें जो मॉनिटर्स अगर आपने कोई नॉमिनेट किए वही आके जो है आपको रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं कि कहाँ पर जो है इंटरवेंशन की जरूरत है, कहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई है, स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी मेंबर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनको बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दे सकते हैं, उनको किसी भी तरह से छोटी सी रिकग्निशन दे सकते हैं ताकि और लोग भी इंस्पायर हो और उन्हें भी खुशी हो कि उन्होंने जो है अपने इंस्टीट्यूशन के लिए ये काम किया। और उसके बाद जो अंत में है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट। जो भी आप करते हैं उसका एक रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि हमने जो किया, मान लीजिए हमने कुछ अकम्प्लिश कर लिया, ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई, कोई खामी तो नहीं रहेगी। अगली बार जब हम इसी प्रोजेक्ट को या इसी प्लान को लागू करेंगे तो हम ये वाली गलतियां जो है अवॉइड करेंगे। तो इस चीज के लिए जो है रिव्यू करना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम रिव्यू करते हैं तभी जो है हम इम्प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने सेलिब्रेशन की बात करी, तो अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगी कि आपके घर के आसपास कोई भी पेड़ है तो आप जो है उसको राखी बांधिए। इसको हमने हमारे MGNCRE ने जो है वो नाम दिया है वृक्ष रक्षा बंधन, यानी हम वृक्ष को राखी बांधेंगे
और हम उस वृक्ष को प्रॉमिस करेंगे कि हम जो है आपकी रक्षा करेंगे, हम आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। तो इस बार जब राखी आएगी तो आप जो है अपने भाइयों को राखी बांधेंगे, है ना? तो और उनको भी राखी बांधेंगे जो जिनको आप चाहते हैं कि आप उनका जो है उनके बारे में पूरी जिंदगी जो है ताउम्र जो है उनका ख्याल रखें। तो मैं चाहूंगी कि आप जो है वृक्ष को भी राखी बांधिए। तो एक ये जो है त्योहार हम रक्षाबंधन का इस बार वृक्ष रक्षाबंधन के रूप में मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप सब मनाएं। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। देखिए, जब भी हमें स्वच्छ कैंपस जो है लागू करना है अभियान अपने कैंपस में, तो हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे संगीता मैम जो हमारे साथ एक एनजीओ से जुड़ी हैं, वर्कशॉप शुरू होने से पहले मैं उनसे बात कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया 24 साल पुराना उनका एनजीओ है और वो 24 साल से जो है बिना किसी के सहयोग के, किसी की मदद से, वो 50 महिलाएं हैं, अपना जो है निजी जो भी उनके पास कह लीजिए बचत रहती है, उससे जो है उन्होंने ये एनजीओ चलाया है। तो कई लोग तो ऐसे हैं हमारे देश में जो अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब स्वच्छ कैंपस की बात आती है तो सरकार की बहुत ज़्यादा नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं। तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैं समझती हूँ कि इन सारी पॉलिसीज और नीतियों का जो है पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो अब ये इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज कौन है, देखिए जो स्वच्छ कैंपस अभियान है उसमें आपके साथ जुड़ेंगे और जिनकी आप मदद ले सकते हैं। देखिए, फंडिंग एजेंसीज हैं जैसे CSR है, हाउसिंग डेवलपमेंट सोसाइटी है, तो ये गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, आप इनसे संपर्क कीजिए। ये वैसे सेंट्रल एजेंसीज हैं लेकिन इनके केंद्र जो है हर डिस्ट्रिक्ट और हर स्टेट में होते हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास आसपास ऐसे लोग हैं जो डोनेशन में बिलीव करते हैं, जो डोनेशन देना चाहते हैं कैंपसेस को, आप उनसे जुड़ सकते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव है स्वच्छ कैंपस अभियान में, उनकी मदद आप ले सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है अपने इंस्टीट्यूशन में एक थिंक टैंक के तौर पे जो है लोगों को इकट्ठा करें। अब इस थिंक टैंक में देखिए कौन हो सकते हैं, आपके प्रिंसिपल, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपके फैकल्टी मेंबर्स, कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं स्वच्छता को लेकर। उसके बाद जो है आपके आसपास के लोग, मान लीजिए कोई मेडिकल डॉक्टर हैं, है ना, या फिर जैसे मैंने पहले भी कहा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कोई सदस्य जो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं स्वच्छता को लेकर, वो कोई ऐसे सेलिब्रिटी जो हैं आपके गांव में या कोई ऐसी जानी मानी हस्ती जो स्वच्छता के साथ जुड़ी है, आप इन सबको जोड़कर अपना एक थिंक टैंक बना सकते हैं ताकि आप कल कुछ कोई भी पॉलिसी बनाएं, कोई भी रणनीति अपनाएं स्वच्छता को लेकर, तो आप एक मीटिंग कर सकते हैं और फिर आप जो है एक्शन प्लान डिसाइड कर सकते हैं। मीडिया और सेलिब्रिटीज को आप अपने साथ जोड़ते हैं। आप देखिए स्वच्छता के साथ तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज और मीडिया जुड़ा हुआ है। पहले गांधी जी थे, गांधी जी के बाद फिर मोदी जी ने इसको पूरा जिसको कहते हैं यूनिवर्सल अभियान, पूरे वर्ल्ड में जो है स्वच्छता को एक अभियान के तौर पे जो है वो सबके सामने रखा। कैलाश खेर जी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर एक गाना गाया है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया मैंने। तो जब सेलिब्रिटीज जुड़ते हैं किसी भी अभियान के साथ तो होता क्या है कि लोग जो है बहुत आसानी से मोटिवेट हो जाते हैं, और खासकर हमारी आज की जनरेशन है, जो यूथ है, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होती है सेलिब्रिटीज से। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्हें आपको लगता है आपके अभियान के साथ जुड़ सकते हैं, उनको आप अपने साथ शामिल कीजिए। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। देखिए, हर गांव में, अगर मैं गांव की बात करूं तो सब्सिडी पे बहुत कुछ जो है सरकार ने इक्विपमेंट अवेलेबल की है, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हो, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन के लिए हो। तो आप भी जो है ऐसी किसी संस्थान से जुड़ सकते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा ले सकते हैं। आपको एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा जो है सब्सिडी पे इक्विपमेंट मिल जाएगा। तो अब अपनी अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जी, मैं काफ़ी देर से मैं ही बोलते जा रही हूँ, तो चलिए आपकी तरफ से भी थोड़ी सी आवाज़ सुनते हैं।
ये एक पिक्चर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जी रश्मि मैम? हाँ मैम, दिखाई पड़ रही है स्क्रीन पर। तो और भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि ये जो तस्वीर है इसको देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? जी रिसाइकिल किया जा रहा है। कोई अगर यूजलेस प्रोडक्ट है या यूजलेस जैसे पॉलीथीन है या बॉटल है तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल करके कैसे हम कोई दूसरी चीज उससे बना सकते हैं। एक जी तरह से ये इनोवेशन भी हो सकता है, कुछ नया उससे हम कर सकते हैं। जैसे आजकल बिल्कुल अगर हम मैम। जी किसी मॉल में जाते हैं तो जो है वहां पे पॉलीथीन पे या जो उनका पॉली बैग है उस पे लिखा होता है कि इसको मतलब 3R करके है मतलब उनका कोड। तो उस पे लिखा रहता है कि कैसे इसको रीयूज करेंगे, रिसाइकिल जी करेंगे। तो जी वैसे हम जी इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए ये पिक्चर बात तो रीस यूज और रिसाइकिल की ही कर रही है। जी जी हाँ, लेकिन मैं कुछ और इसमें जानना चाह रही हूँ। अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो इसमें आपको एक छड़ी नुमा कोई चीज दिख जाएगी। जी क्या आप जी देख जी पा रहे हैं? जी बिल्कुल दिख रहा है मैम। हाँ, दिख तो रहा है मैम। आप में से कोई बता पाएंगे इस छड़ी का जो है, ये स्वच्छता आंदोलन में बहुत महत्व है और इसका एक बड़ा पिक्यूलियर सा नाम भी दिया गया है। आप में से कोई जानते हैं इस छड़ी का नाम? देखिए जब मैंने इसके बारे में जाना तो मुझे भी थोड़ा अचंभा हुआ, लेकिन ये एक बहुत ही आसान सी नॉर्मल सी दिखने वाली छड़ी है, लेकिन बहुत ही उपयोगी है। कोई बताना चाहेंगे इस छड़ी का नाम क्या है? जी चलिए, कोई बात नहीं, मैं ही आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली इस छड़ी को नाम दिया गया है गांधी छड़ी का। ये कुछ भी नहीं है, ये एक प्लास्टिक का डंडा है और कई जगह पर तो एक लकड़ी के डंडे को भी ले लिया जाता है और उस पे आगे एक बहुत नुकीला सा लोहे का, जिसे कह लीजिए कांटा नुमा कोई चीज है, वो जोड़ दी जाती है। आपने देखा होगा अक्सर जो है कचरा ऐसी जगहों पे पड़ा होता है जहां पर कचरे को हाथ से उठाने में थोड़ा सा जो है संकोच होता है ना? तो हमारे जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको ये प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए जो है ये गांधी छड़ी बनाई गई। बहुत ही सिंपल इनोवेशन है ये। और इस डंडे के जरिए जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, बस ये डंडा लेकर कोई भी प्लास्टिक बॉटल है या रबड़ पेपर कुछ भी है, उसको इस नोक में फंसा लेते हैं और वापस फिर ये डस्टबिन में ले जाकर इसको निकाल देते हैं। तो ये किरण मैडम, मैं डॉक्टर डोंगे बोल रहा हूँ। मैं जी आपके ऑफिस सर। में आ गया हूँ। आपकी अभी जो आपने स्लाइड शेयर की है, मुझे अपील कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है बात। तो जी मैं ये भी चाहूंगा कि हमारी बात को आप, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको आप आगे पहुंचाएं। इस MGNCRE में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ साथ इस तरह के इनोवेशन अगर कोई करना है या जी करना जी चाहता है, तो उसके लिए कुछ अगर जी फंडिंग का अरेंजमेंट हो सके आगे, या कुछ अवार्ड का प्रोविजन से, मान लीजिए नेक्स्ट साल अभी हमारे जिले के कई प्रिंसिपल लोग जुड़े हुए हैं और सब जी वो कॉलेज एकदम बाकी रूरल एरिया के जहाँ के प्रिंसिपल आज जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छा इनोवेटर तो गांव में ही पाया जाता है जी सर, और बिल्कुल गरीबी से सही ही कह रहे निकलता है। हैं। जी 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 वर्ल्ड के जो ग्रेटेस्ट इनोवेटर थे प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने जिस तरह से जी जीवन जिया था अपना, तो उनसे बड़ा कोई इनोवेटर दुनिया में हुआ नहीं आज तक, जो कि जी गवर्नमेंट सर। ऑफ इंडिया के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में उन्होंने लीड किया देश को। जी तो जी हम लोग को भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो गाँवों के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कई बार ऐसी बातें बताते हैं मजाक मजाक में, जो लगता है कि बहुत अच्छा इनोवेशन से बहुत अच्छा है। तो इस तरह कुछ आइडिया भी डेवलप होना चाहिए। जी प्रसन्न जी कुमार जी हैं साथ में, तो उनको भी मेरी बात सुनने में आ रही होगी, या नहीं होंगे तो आप बिल्कुल। बताइएगा। हाँ, जी तो जी इस तरह की जी इनोवेशन को, इसमें भी स्वच्छता भी इनोवेशन का समावेश किया जाना चाहिए। इस तरह कुछ जी अवार्ड बच्चों के लिए, या कोई टीचर ही कुछ करता है, कोई ग्रुप बना के या टोली बना के कोई काम करते बिल्कुल हैं इनोवेटिव आइडिया के साथ में, तो उसको रिकॉग्नाइज बिल्कुल। करने का प्रयास करना चाहिए। जी इस जी बात मैं जी आपको धन्यवाद देता हूँ। नहीं नहीं सर, डोंगरे सर आपने इतना अच्छा सुझाव दिया और आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि गांव में जो है बहुत इनोवेटर्स जो है वो पाए जाते हैं। अभी स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस डे था, तो वहां मैंने एक देखा, एक वीडियो शेयर हो रहा था जहां गांव के बच्चे हैं वो ड्रम्स वगैरह लेकर जो है उन्होंने राष्ट्रीय गान गाया। तो ये सर आपने बिल्कुल सच कहा कि गांव में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो
कई बार ऐसी बात कह जाते हैं जो शायद बड़े भी ना सोच पाए। और सर ये मैंने बिल्कुल नोट कर लिया है। मेरे MGNCRE के बहुत सहकर्मी जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी आई एम श्योर ये बात सुनी होगी। साथ ही मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ सर कि जैसे ही वर्कशॉप खत्म होगा मैं हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर WG प्रसन्न कुमार, उन तक आपकी बात जो ये तुरंत पहुंचाऊंगी, और उन्होंने जो इस बारे में क्या कहा है वो भी मैं आपको फीडबैक सर तुरंत दूंगी। तो क्योंकि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, जो भी इनोवेशन करता है उसको जो है उसकी हौसला अफजाई जो है वो बहुत जरूरी है। तो सर आपकी ये बात आप निश्चिंत रहिए, चेयरमैन सर तक जरूर पहुंचेगी जी। तो हम गांधी छड़ी की बात कर रहे थे, चलिए अब हम आते हैं कि हम इको फ्रेंडली तरीके जो हैं अपने कैंपस में कैसे अपना सकते हैं, है ना। देखिए सबसे पहली बात जो है वो है रीथिंक। जैसे DM मैम ने भी कहा कि सोच बदलना, माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। मैं जिस स्कूल से हूँ वो कॉन्वेंट स्कूल था, और हमारी जो नन्स थी उन्होंने मुझे एक ही आदत डाली है, जो आदत मैंने अपने बच्चों में भी डाली है। मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कोई भी चीज फेंकने से पहले ये सोच लो कि इसका जो है कहीं और इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। और जापानी बच्चों के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो जो प्याज का छिलका है उसको भी नहीं डस्टबिन में फेंकते, उससे भी जो है वो बहुत सुंदर फूल बनाते। तो हमें पहली शुरुआत तो इसी से करनी है कि हमको अपनी सोच बदलनी है। दूसरा, हमें रिफ्यूज करना है। अब हमें क्या रिफ्यूज करना है, देखिए हमें रिफ्यूज करना है प्लास्टिक, हम प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे। हमें रिफ्यूज करना है ये डिस्पोजेबल चीजें, डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिस्पोजेबल कप, ये सब हमें रिफ्यूज करना है कि हम ऐसी चीजें नहीं यूज करेंगे जिनको जो है हम दोबारा यूज ना कर सके। उसके बाद रिड्यूस। गांधी जी ने कहा था कि इस धरती में सब ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो है पर्याप्त है, ये धरती सबके लिए सब कुछ दे सकती है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। तो रिड्यूस से मैं ये समझती हूँ हमें अपना लालच भी थोड़ा है कहीं ना कहीं कम करना है। उसके बाद आइए रीयूज पे, किसी चीज को कैसे रीयूज करना है। एक तरह से इसको रीइन्वेंट भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आप सब्जी लेने जाते हैं, छोटा सा एग्जांपल दूंगी रीयूज का। प्लास्टिक के थैले में सब्जी मत लीजिए, आप घर से एक लेके जाइए जूट बैग, क्योंकि वो जूट बैग जो है आप उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं, है ना। तो रिसाइकल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसको हम आजकल अपसाइकल भी कहते हैं कि मान लीजिए पुराने टायर हैं, उनको हमने पौधा लगाने के लिए जो है प्लांटर बना दिया, बॉटल है उससे हमने एक छोटा प्लांटर बना दिया। तो ये रीयूज, रिसाइकल और अपसाइकल भी जो है हमें अपनाना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि एक पेड़ जो है आप देखिए सिर्फ छाया नहीं देता, फ्रूट और फल नहीं देता। हम सब ने साइंस पढ़ी, हम सब जानते हैं कि एक पेड़ जो है हमें कितना कुछ देता है। आज जब वृक्षों की कमी हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग जो है शुरू हो गई है। हमारे जो है अंटार्कटिका में और आर्टिक जो एरियाज हैं वहाँ पर हमारे जितने भी जलाशय हैं और वो सब पिघलने लग गए हैं। तो ट्री प्लांट करना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ तरीके मैंने आपसे शेयर किए हैं इको फ्रेंडली होने के लिए। ये जो स्लाइड है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये मेरे बहुत फेवरेट ऑथर हैं। 1970 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, फ्यूचर शॉक। ये ऑल्विन टॉफलर हैं, अमेरिकन ऑथर हैं, और उन्होंने 1970 में ही अपनी किताब में लिख दिया था कि 21वीं सदी में जो है ह्यूमन बीइंग्स को क्या क्या तकलीफें होंगी। और जैसा कि अगर आप पढ़ पा रहे हैं, द इलिटरेट ऑफ द 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि 21वीं सदी में जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इलिटरेट नहीं है, बल्कि वो इलिटरेट है जो सीखना नहीं चाहता। वो इलिटरेट है जिसने कुछ अगर मान लीजिए गलत सीखा है तो उसको ठीक नहीं करना चाहता, और वो इलिटरेट है जो सीखने के बाद भी रीलर्न नहीं करना चाहता, यानी कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं लाना चाहता। इन्होंने जो किताब लिखी फ्यूचर शॉक 1970 में लिखी थी, मैंने उसको 1985 में पढ़ा था, और उन्होंने उसमें बिल्कुल लिख दिया था कि 21वीं सदी में
थ्रो अवे सोसाइटीज आ जाएंगी। थ्रो अवे सोसाइटीज यानी ऐसी सोसाइटीज जो हर चीज को इस्तेमाल करके फेंकने में विश्वास रखेंगी। और उन्होंने ये बहुत बड़ी एक बात कही, कहीं ना कहीं हम रिश्तों को भी ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे कि हमने किसी को दोस्त बनाया, वो हमारे काम आ गया और हमने उसको फिर हम भूल गए। और मुझे ना जाने क्यों उनकी ये कही हुई बात जो है बिल्कुल सच नजर आती है। आप देखिए आजकल हर चीज थ्रो अवे है। पहले जो है कपड़े का रुमाल होता था, उसको हम धोते थे, दोबारा यूज करते थे। आजकल क्या हो गया है, वो पेपर नैपकिन आता है, उसको यूज किया, गोलमोल किया और फेंक दिया, ये भी नहीं देखा कि डस्टबिन में गया है कि नहीं। पेन्स जो हैं आजकल ऐसे मिलने लग गए हैं 5 रुपए के, 2 रुपए के, कि जिनमें आप रिफिल ही नहीं डाल सकते। आपने उनको एक बार यूज किया तो उनको फेंकना ही फेंकना है। मैं तो उस जनरेशन से हूँ जहां पर जो है दादाजी अपने पोते को अपना फाउंटेन पेन देते थे कि ये लो बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। आज की जनरेशन में मुझे नहीं लगता कि कोई दादाजी जो हैं ऐसा कोई पेन यूज करते होंगे। तो मैं यहाँ पर इसी बात पे जोर देना चाह रही हूँ, क्योंकि हम अभी अपसाइकिल, रिसाइकिल, रीयूज की बात कर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में उन चीजों का इस्तेमाल करें जिनको जो है हम बार बार यूज कर सकें। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छ कैंपस जो है, जब आप ये अभियान शुरू करेंगे उसमें आपको कुछ पॉलिसीज हैं जो अपनाना पड़ेंगी। और ये 7 पॉलिसीज हैं, मैं इनको स्वच्छ कैंपस का इंद्रधनुष बोलती हूँ। तो पहली पॉलिसी है सैनिटेशन एंड हाइजीन, दूसरी है वाटर कंजर्वेशन, उसके बाद तीसरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, ग्रीनिंग पॉलिसी और स्टूडेंट एक्टिविटी पॉलिसी। हमारा जो मैन्यूल है, जैसे मैंने आपसे पहले भी इसके बारे में जिक्र किया, उसमें इन पॉलिसीज को आपने कैसे अपनाना है, कैसे लागू करना है, कैसे जो है अपने स्टूडेंट्स को और अपने कैंपस में रह रहे लोगों को इन पॉलिसी के साथ जोड़ना है एक्शन प्लान के जरिए, वो पूरा जो है विस्तृत रूप से एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, ताकि आपको जो है आगे चल के कोई भी परेशानी ना हो कि हमें मान लीजिए वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी अगर लागू करनी है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। ये पूरा डिटेल जो है आपको हमारे मैन्यूल में मिल जाएगा। यूं समझिए कि हमने आपके लिए जो है ये मैन्यूल बना के स्वच्छता कैंपस अभियान लागू करने के लिए आपका काम जो है बहुत बहुत आसान कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, जब आप हमारे साथ इस साल जुड़ेंगे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, आप हमें अपने परफॉर्मेंस भेजेंगे तो हम जो है आपको कुछ नंबर देंगे, और ये नंबर्स जो है इन कैटेगरीज में होंगे। पहला है सैनिटेशन और हाइजीन, फिर वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ग्रीनरी और एनर्जी कॉन्वर्सेशन। कुल मिला के ये 600 अंक होंगे जिन पे जो है हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, और जिस इंस्टीट्यूशन को सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे उसको जो है फिर हम अगले साल का विजेता घोषित करेंगे। अब देखिए मैंने आपके साथ मैन्यूल डिस्कस कर लिया जी, और MGNCRE चाहता है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसलिए हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। पहली बात, जो व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमारे साथ जुड़े हैं उसे छोड़िएगा मत, उसके साथ जुड़े रहिएगा। दूसरा जो है, वर्कशॉप के बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर करेंगे, उसमें हमें बस आपका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस, नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम। उसके बाद हमें आपसे कोऑपरेशन चाहिए कि जो हमने आपके साथ स्वच्छ कैंपस मैन्यूल शेयर किया है उस मैन्यूल को जो है आप हार्ड कॉपी बना के अपने कॉलेज में रखिए, इंस्टीट्यूशन में रखिए, एक रेफरेंस बुक के तौर पे जो है स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स जो हैं ताकि उसको यूज कर सकें। और जो है हम ये भी चाहेंगे कि जब आप ये मैन्यूल यूज करें तो जो भी आप पॉलिसी बनाएं वो आप अपनी स्टूडेंट्स की हेल्प लेकर बनाएं, क्योंकि देखिए होना क्या है, जब तक आपके स्टूडेंट्स आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, ये जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, ये सफल होना जो है थोड़ा सा नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, तो टीम बना के चलेंगे, स्टूडेंट्स की टीम बनाएंगे तो जो है स्वच्छ कैंपस अभियान जो है लागू करने में बहुत आसानी होगी जी। अब मैं बस जो मेरा अंतिम पड़ाव है वर्कशॉप का, उस तक मैं पहुंच चुकी हूँ। बस 2 स्लाइड्स और हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए तस्वीर चुनी थी। ये स्कूल है एक, अक्षर फोरम स्कूल पमोई में।
गुवाहाटी में। यहाँ पे ये स्कूल क्या करता है, गरीब बच्चे जो फीस नहीं दे पाते, उन गरीब बच्चों से ये स्कूल कहता है कि आप रोज जो है प्रतिदिन का जो प्लास्टिक का कचरा है वो आप स्कूल में लेके आइए। ये जो स्कूल है बहुत ज़्यादा एनजीओज के साथ और बहुत ज़्यादा ऐसी एजेंसीज के साथ जुड़ा है जो रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग करते हैं। तो जब ये प्लास्टिक का कचरा ये स्कूल उन ऑर्गेनाइजेशंस या उन एजेंसीज में देता है, तब जो है उससे जो स्कूल को आमदनी होती है, तो बच्चों को जो है स्कूल की फीस ना देना पड़े, तो उसी आमदनी में से जो है वो स्कूल बच्चों की फीस अपनी तरफ से देता है। ये मुझे बहुत अच्छी और प्यारी एक पहल लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में इसको शेयर करूं। जी अच्छा, आप लोग अगर मुझे सुन पा रहे हैं, रश्मि मैम, पूजा मैम? यस मैम, सुन पा रहे हैं। जी मैम। तो अच्छा, आप में से और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर कभी दिल्ली की तरफ गए हैं तो ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ ये आप लोगों ने जरूर देखी होगी। जी, आप में से कोई दिल्ली की तरफ गए हैं कभी? जी मैम, गए हैं। हाँ, तो अगर आप सर गाजीपुर की तरफ से दिल्ली में एंटर करेंगे तो आपको ये दृश्य जरूर देखने को मिला होगा। जी मैम, कूड़े के पहाड़ हैं। इसको हम लोग कूड़े का पहाड़ बोलते हैं। बिल्कुल सर, एक्चुअली जब मैंने ये पहली बार देखा तो मुझे लगा दिल्ली के शुरुआत में ये बड़ा सा पहाड़ कहाँ आ गया, लेकिन फिर मैंने जब थोड़ा और नजदीक जाके देखा तो ये बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ है। ये सिर्फ आज की डेट में 8 मीटर ऊंचाई कम है इसकी कुतुब मीनार से, और पूरी दिल्ली का कचरा जो है 600 ट्रक जो है रोज यहाँ पर आके पूरे दिल्ली का कचरा यहाँ पर डालते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी गंदगी, कितनी बदबू। और इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर मैंने एक और जो मुझे बड़े डिस्टर्बिंग सी बात लगी, मैंने यहाँ पर जो है छोटे बच्चों को देखा जो कचरा इकट्ठा कर रहे थे। तो मुझे ये लगा ये इतने कूड़े के ढेर में कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, ये कल को ना जाने किस बीमारी का शिकार हो जाएंगे। यानी हम लोग जो बिल्कुल बिना सोचे समझे अपना कचरा डिस्पोज कर देते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम अपने और जो हमारे सिटीजन्स हैं और जो लोग हैं उनके लिए हम कितनी बड़ी जो है वो समस्या खड़ी करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे ये शेयर करा पिक्चर, ताकि हम ये रियलाइज करें कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। अभी अगर हम नहीं जागे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। ये जो हमारी सुंदर धरती है, ये हमारी जो हमारा देश है, ये सिर्फ ऐसा कचरे का ढेर ही बनकर रह ना जाए। इसीलिए जो है हमें स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ना है। चलिए, अब एक ये मैं आपके साथ केस स्टडी शेयर करूंगी। इनसे मैं पर्सनली मिली हूँ। इनका नाम अनुराधा राव है। अगर आपको याद होगा तो 2004 में एक सुनामी आया था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और ये जो अनुराधा राव है, इनका जो पूरी फैमिली थी जो है वो पूरा परिवार इनका उस सुनामी में नष्ट हो गया था। ये अकेली हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा कि द्वीप अंडमान जो है, निकोबार द्वीप समूह, और छोटे छोटे आइलैंड्स का समूह है, कम 100 के करीब उसमें आइलैंड्स हैं। तो उनमें से एक आइलैंड है रॉस आइलैंड। तो इन्होंने क्या किया, वो रॉस आइलैंड में वहां पर उन्होंने जाने शुरू कर दिया। आज जो है रॉस आइलैंड में 2000 जानवर हैं, और यकीन मानिए मैं जब इनसे मिली तो मैं बहुत हैरान हुई कि इन्होंने हर जानवर का नाम रखा है, हर जानवर को ये नाम से बुलाती हैं, और वो नाम सुनते ही तुरंत जो है इनके पास आ जाता है। मैं आपके साथ इनकी पिक्चर इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैंने ह्यूमन बीइंग्स का, इंसान का और नेचर का इतना सुंदर समन्वय जो है आज दिन तक नहीं देखा। इतना प्यारा बैलेंस है एनिमल्स में और ह्यूमंस में। और मेरा मकसद भी आपके साथ ये तस्वीर शेयर करने का इसलिए है कि हम ये सीखें कि हमें जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बना के रहना है। कहीं पे भी लालच अगर हमारे मन में आ गया और हमने सोचा कि चले इसको नष्ट करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो फिर ये धरती एक दिन हमारे रहने लायक ही नहीं बनेगी। तो इसी के साथ जो है मैं अपना जो ये वर्कशॉप का सेशन जो है खत्म करती हूँ, और बस यही चाहती हूँ कि हम सब जो है सिर्फ एक कदम जो है स्वच्छता की ओर बढ़ाएं। आप
आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक बार और जो है आप सबसे जुड़ूंगी यहाँ पर। जी किरण मैम। हाँ जी। हाँ किरण मैम, इफ यू डोंट माइंड मैम, ये स्वच्छता की बात जो की जा रही है, जी तो स्वच्छता तो ठीक है, मान लीजिए ये तो हमको वर्किंग करना ही करना है, लेकिन हम जी ये जी जानना चाहते हैं कि जिसकी दिमाग में ही गंदगी भरी हो, जो अंदर से मतलब व्यक्तिगत रूप से जो स्वच्छ ना हो, जिसकी सोच स्वच्छ ना हो, उसको कैसे बदल सकते हैं हम? जब तक आदमी खुद नहीं स्वच्छ होगा, वो क्या स्वच्छता में बिल्कुल अपना मैम। योगदान दे सकेगा? मैम देखिए हम यही कह रहे हैं, माइंडसेट चेंज करना है मैम। और आप देखिए हमारे देश में ना मैम संस्कारों की कमी है ही नहीं। आप जी कोई भी जी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए। अभी देखिए पहले क्या होता था, देखिए ये थोड़ा नुकसान हो गया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, लोग घरों से बाहर निकलने लग गए और न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई, है ना। जी अब न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या है, माता पिता हैं, दोनों काम करते हैं, बच्चे हैं वो अपने काम में व्यस्त हैं। तो जो संस्कार, जो एक हमारे यहाँ रिवाज था, जो रीत चली आई थी कि घर के बुजुर्ग जो हैं अपने जो ग्रैंडसन्स हैं, ग्रैंड डॉटर्स हैं, पोते पोतियां हैं, नाती पोते, उनको जो संस्कार देते थे, वो जो है कहीं पर जो संपर्क है बुजुर्गों का और जो नई पीढ़ी का है, वो कहीं टूट गया। संस्कारों की कमी हो गई मैम। जी लेकिन अभी भी जो है सोच बदलने की जरूरत है। हमें बस इतना ही करना है मैम कि देखिए मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मोटो भी यही है, ईच वन रीच वन, यस है ना। मैम। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप एक हैं और आप अगर किसी एक के भी सोच में, मन में और व्यवहार में जो है बदलाव ला सकते हैं, तो वही जो है देश के लिए एक बहुत बड़ा जो है आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक एक करके मैम कड़ी जोड़ेंगे, एक एक करके साथ में जुड़ेंगे, तो निश्चय ही जो है जो सोच है वो जरूर बदलेगी। जी मैम, लेकिन मैं बता दूं, मेरा अपना अनुभव रहा है, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, या जैसे भी मैं भी प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर मैं भी हूँ, तो जी कॉलेज स्तर पे या जो भी पढ़े लिखे हाई हाई सोसाइटी या जिनका जो ज्यादा एजुकेटेड हैं, तो उनमें जो है पॉलिटिक्स करने की प्रवृत्ति ज्यादा है। जी और जी जी मैं तो भुक्तभोगी हूँ इसका, मुझे मंच से नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि मनीषा मैं मैम, इसका भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं ये बता रही हूँ आपको। जी तो जी मनीषा जब मैम, तक आदमी मन से नहीं स्वच्छ होगा ना, तब तक वो जो है स्वच्छता में अपना योगदान नहीं दे सकता। ये जी मेरा जी। अपना जो है मैं मनीषा बता रही हूँ। मैम, यस। जी मनीषा मैम, रश्मि मैम यहाँ पर कुछ कहना चाह रही। जी रश्मि मैम। मनीषा मैम से मैं कहना चाह रही थी कि मनीषा मैम, आज जो हमारी वर्कशॉप है उसकी थीम है कि हम कैसे अपने कैंपस में जो क्लीनलीनेस है, स्वच्छता अभियान है, उसको चला सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैम उसके बारे में बताना चाह रही है कि हम लोग कैसे अपनी फैकल्टी को एक साथ जोड़ करके और एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब जिनके विचार खराब हैं, तो आप जैसे अच्छे लोग भी तो हैं, उन लोग के साथ हम लोग मिलेंगे ना, मिल करके आगे बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पूरा बिल्कुल योगदान रहेगा। मैंने पिछले साल भी बिल्कुल काम मैम, किया है, मैं इस बार भी काम करूंगी। ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल यहाँ रहूं या कहीं बिल्कुल भी रहूं, क्योंकि बिल्कुल आदमी की जो मैम। क्वालिटी होती है वो कभी जो है कहीं छुपी नहीं रहती है, वो निखर के आती ही आती है। थैंक यू मनीषा मैम। किरण जी। मैम, अब आप आगे और किसी से क्वेश्चन हाँ आपको जी, लेनी हो? हाँ जी, मुझसे कोई और कुछ सवाल करना चाहता है, कोई और कन्वे कुछ करना चाहता है हमारे चेयरमैन सर को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप जो है मुझे बता सकते हैं। और यही नहीं, आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहां पर भी जो है आगे भी चल के आपकी जितनी क्वेरीज हैं आप हमारे साथ जो है शेयर कर सकते हैं। नहीं मैम, आपकी और संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए जी हम जो है बहुत आपको बधाई देते हैं। और हम लोग अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम जो है इसमें एक टीम मतलब बनाकर काम किए और हमारे कॉलेज जी को ये अवार्ड मिला। तो जी इसके जी लिए जो है मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी संस्था की, और अपने कॉलेज के जितने भी मेंबर रहे, जो भी सहयोग किए उनकी भी, और जी आगे भी हम आपको पूरा सहयोग देते रहेंगे। जी। धन्यवाद। मनीषा मैम, आपने जो शुरू में जिक्र किया था, मैं बस उसमें एक एडिशन करना चाहूंगी। मैं आप सबसे ये बताना चाहूंगी कि देखिए श्री कृष्ण जी ने हमें एक बहुत अच्छा मंत्र दिया है कि जी कर्म मैम। करो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, जी 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 अगला बिल्कुल। कौन कैसा है, किस तरह से है, हम उसकी सोच बदल पाए ना पाए, हमें जी अपनी तरफ से जो है पूरा प्रयत्न करना है कि हम जो बिल्कुल है मैम, बिल्कुल। बिल्कुल जी ठीक काम करें, है ना। जी तो संजय बिल्कुल द्विवेदी जी सर, बिल्कुल आप सही हमारे साथ। साथ जी 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 किरण आप मैडम, मैम, सर आपने कुछ कहना चाह रहे बहुत थे। अच्छी बात बोली, जी बहुत अच्छी बात बोली आपने।
मतलब भगवत गीता से बात बोली, बहुत अच्छा लगा। जी जी और हम लोग यही कर रहे हैं। हम लोग ने कल स्वप्न में नहीं सोचा था कि हम लोग को पुरस्कार मिलेगा इस काम करने से। जी उससे इनोवेशन काउंसिल में हम लोग को बहुत अच्छा ग्रेड सर्टिफिकेट मिला, और साथ साथ में हमारे कॉलेज से 8 टीचर्स को इनोवेशन एम्बेसडर बनाया आपके मंत्रालय ने, जो कि जी मुझे लगता है शायद ही किसी इंस्टीट्यूट में इतने एम्बेसडर बने होंगे। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये तो चलता बिल्कुल रहेगा। सर, और हम लोग भी, बिल्कुल आप जो भी प्रोग्राम बताएंगे उसके लिए हम लोग जुड़ते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। जी, धन्यवाद सर। द्विवेदी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या इसको पूरी तरह से बुद्धिवाद पर तो ये डिपेंड है, लेकिन क्या मैं इसको भावनात्मक या धार्मिक रूप से जोड़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती। मैंने देखिए शुरू में ही कहा था, हमारी सभ्यता ही ऐसी है। हमारे धर्म ग्रंथ आप ले लीजिए, उनमें सब में लिखा है कि आप जो है और देखिए सर, जब भी हम कोई काम करते हैं ना द्विवेदी सर, तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम उससे भाव के साथ ही जुड़ते हैं। एक्शन तो बाद में होता है, पहले मन में ये इच्छा आती है, भाव आता है कि हाँ हमें ये काम करना है, उसी के बाद जो है हम एक्शन के बारे में सोचते हैं। तो अगर भावात्मक तरीके से इसके साथ जुड़ जाएंगे, हम पैशनेट हो जाएंगे कि नहीं मेरा मोहल्ला गंदा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, तो सर ये तब तो ये अभियान सर मुझे लगता है ऐसी ऐसी ऊंचाइयां छुएगा कि जिसकी हम जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं सर। और मैं आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं जानना चाहूंगी कि जो आपने बात कही है भावनात्मक और धार्मिक तौर पे जुड़ने की, तो आप इसको कैसे लेके जा रहे हैं सर, ये मुझसे जरूर आप शेयर कीजिए। डॉक्टर प्रीतम है, उन्होंने अपना हैंड रेज किया है। डॉक्टर सर, प्रीतम सर, आप हमारे साथ कुछ कहना चाहते हैं? जी, डॉक्टर प्रीतम जी हैं, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो। गलती से लग रहा है हैंड रेज हुआ है मैम। अच्छा अच्छा, जी जी जी। और कोई हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स और अतिथि जो हैं मैडम? हाँ जी, हाँ जी संजय सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनपद स्तर पर जैसे कि KNPG हम लोग अग्रणी महाविद्यालय है, उनके नेतृत्व में एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हर महाविद्यालय से एक दो मतलब टीम बनाया जाए, और एक मतलब कि 1 महीना 2 महीना के लिए एक महाविद्यालय का गोद लिया जाए, जो मोदी जी का स्कीम है, उसके तहत हम लोग कार्य करें तो और अच्छा जो है मोटिवेट हम लोग हो पाएंगे और अच्छा से हम लोग जागरूक हो पाएंगे। बिल्कुल सही कहा संजय सर आपने। एक्चुअली हमारे मैनुअल में इस बात का रेफरेंस है कि हम एज ए यूनिवर्सिटी, एज ए इंस्टीट्यूशन जो है, अगर चाहें तो आसपास के गांव हैं उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। मैंने जब कम्युनिटी एंगेजमेंट में वर्कशॉप्स की थी, तो यहाँ सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है संजय सर, उन्होंने अपने आसपास के 6 गांव को गोद लिया है सॉरी। तो और उस गांव के लिए वो क्या करते हैं, उन गांव के लिए कि उन्होंने कोविड के टाइम पे ये बिल्कुल देखा कि सबको वैक्सीनेशन मिले, मास्क मिले, जागरूकता फैले। तो सर बिल्कुल आपका सुझाव बहुत सही है सर, और ऐसा हमारे मैनुअल में भी जिक्र है कि जो है हायर लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने आसपास जुड़े हुए गांव में से किसी एक को, 2 को, या जितनी उनकी इच्छा है उनको जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुझाव सर आपका, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी, तो अगर आपकी ओर से कोई प्रश्न नहीं है तो डोंगरे सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। अच्छा, ओहो संगीता मैम, आपने बहुत समय पे जो है अपना कैमरा ऑन करा। जी, मैं चाह ही रही थी कि आपसे पूछूं, फिर एक अचानक से ध्यान से मेरी बात निकल गई। मैं आप सब जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ जुड़े हैं उनको ये बता दूं कि संगीता मैम जो है वो एक NGO चलाती हैं, और ये NGO जो है, अगर मेरी हिंदी शुद्ध है और ठीक है, स्वचालित है, यानी वो किसी से कोई मदद नहीं लेती। ये 50 लेडीज जो है अपने आप से ही जो है पैसे इकट्ठे करके बच्चों की और लड़कियों की और हर प्रकार से जो है अपने आसपास के इलाके में जितने लोग हैं उनकी मदद करते हैं। संगीता मैम, आप बहुत बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हर उस इंसान के लिए जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। मैं भी मैम आज आपके साथ जुड़ गई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ जुड़ गई, और मैं निवेदन करूंगी कि आगे भी जो है आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप जैसे लोग मैम
बहुत ज्यादा जो है प्रेरणा का स्रोत है। यू आर अ ह्यूज मोटिवेशन टू एवरीबडी अराउंड यू मैम। और आप म्यूट पे हैं मैम, कुछ कहना चाहते हैं तो खुद को अनम्यूट कर लीजिए। संगीता मैम आप म्यूट पे हैं जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैम हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं जी। चलिए, हम मैम को सुन नहीं पाए लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। रश्मि मैम आप मुझे प्लीज इनका नंबर दे दीजिएगा, ये बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। अच्छा, ये श्याम प्रसाद मुखर्जी जी जो हैं हमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? सर आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। संगीता मैम आप भी म्यूट पे हैं, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली मैम श्याम प्रसाद मुखर्जी से ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं। अच्छा जी। इन्होंने हैंड रेज, श्याम प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट कॉलेज है भदोही में दूसरा, जहाँ से प्रिंसिपल सर जुड़े हुए हैं। इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं मैम से? आप सर म्यूट पर हैं, पहले आपने हाँ जी, मैं रश्मि मैम उन्हें बता चुकी कि वो म्यूट पे हैं और उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी मैम। और शायद वो हमें सुन भी नहीं पा रहे हैं। हाँ किरण जी, आवाज आई मेरी? हाँ जी हाँ जी, अब बिल्कुल आ गई संगीता मैम। जी मैम बोलिए। किरण जी हम ये कह रहे थे, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ, आपकी बातों से बहुत इम्प्रेस हूँ। सुबह आपने जो हमको बताया कोटेशन, मैं तन मन से सेवा में जुड़ना चाहती हूँ। वैसे इस समय जो बीच में थोड़ी देर डिसकंटिन्यू हुए, वो मैं CWC की मेंबर भी हूँ, तो उसमें इस समय कोई केस आ गया था तो उसमें फंस गई थी। नहीं तो बहुत अच्छा लगा। आगे कभी भी हमारी आपकी बात हो तो अच्छा लगेगा। और कामिनी जी को भी बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों के साथ उन्होंने मेरे को जोड़ा। जी जी मैम। मैम हमारी किस्मत अच्छी है, खुशकिस्मती कि आप जो है जुड़े जी। और मैम अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा मैम हमेशा। बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके बेटा। जी श्याम प्रसाद सर जी, आप अभी भी म्यूट पे हैं, हम आपको सुन नहीं पा रहे जी। रश्मि मैम अगर आपके पास, हेलो। हाँ जी हाँ सर, अब हम आपको सुन पा रहे हैं। जी 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 सर बोलिए। तो मैं भदोही जिले के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य हूँ। पहले तो मैं डॉक्टर, हमारे मित्र डॉक्टर डोंगरे जी हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। काशीनेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि आपने जो अच्छा कार्य किया उसको आज रिकॉग्नाइज किया गया, और इससे हमारा भदोही जिला, हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हमारे डोगरे साहब हमेशा सक्रिय रहते हैं जब भी कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें पूरी टीम के साथ जुड़ जाते हैं और उसका फल आज मिल भी रहा है। जहाँ तक स्वच्छता की बात है, मैं शायद प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे तब इन्होंने इस चीज़ का अभियान शुरू किया था। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, मैं व्यक्तिगत स्तर पर मैं बहुत पहले से स्वच्छता अभियान मैं चला रहा हूँ, और आपको जान के खुशी होगी कि मैंने रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन आज 10 सालों से मैं ये अभियान व्यक्तिगत स्तर पर चला रहा हूँ। और मैं जहाँ कॉलोनी मेरी है रहता हूँ, वहाँ डेली मैं 150 मीटर सड़क खुद झाड़ू लगा कर सफाई करता हूँ। नाली है पूरे कॉलोनी की, मैं सफाई करता हूँ। और महाविद्यालय, जैसे मैं यहाँ प्राचार्य बन के आया हूँ, महाविद्यालय कैंपस को भी प्लास्टिक मुक्त किया हूँ, थोड़ा टुकड़ा भी गंदगी का नहीं मिलता है। और मैंने जो आपने इसके साथ हमारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हुआ था आपके माध्यम से। लेकिन ये सब कुछ इतना करते हुए भी, जैसे आपने कहा कि कर्म करते जाइए, फल की आशा न रखिए, उसी भावना से जो है आज नहीं, हम 10 सालों से कर रहे हैं। किसी अवार्ड की इच्छा रख के नहीं मैंने किया, जो है इससे मुझे संतोष मिलता है, जो है कि कुछ जो है मैं कर रहा हूँ, और किसी के दिखावे के लिए नहीं करता हूँ, किसी प्रशंसा के लिए नहीं करता हूँ। प्रशंसा मिल गई तो अच्छी बात है। तो मैं बहुत अच्छा लगा कि भदोही जिले को ये अवार्ड मिला है, विशेष कर हमारे मित्र KN डोंगरे साहब को। ये हमारे बड़े भाई हैं,
ये बड़ा कॉलेज है तो बड़ा भाई मानते हैं केन कॉलेज को। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार केएनपीजी कॉलेज के साथ साथ मेरे कॉलेज को भी रिकग्नाइज किया जाएगा। और बस यही है कि मैं रिकॉर्ड नहीं, जितना मैं काम किया हूँ शायद ही कोई कर पाया, बस रिकॉर्ड नहीं रख पाया हूँ। और अब इसके बाद से, और हमारे डोंगरे साहब केएनपीजी कॉलेज वैसे ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो ये करते हैं उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग भी करते हैं। इसमें भी रिकॉर्ड के साथ अगले साल निश्चित रूप से आपके सामने हम लोग प्रस्तुत होंगे। और किरण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो जितना हो सकता है उससे भी ज़्यादा हम लोग करेंगे। डॉक्टर गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये निश्चित है कि ये पुरस्कार आपको ही मिलना चाहिए था, लेकिन अगली बार मिलेगा। हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है सर, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी कि मैं पर्सनल तौर पे सर इंटरेस्ट लूंगी, आपका परफॉर्मा हमारे तक आए। और जैसे जैसे जो है जितना भी मुझसे मेरी तरफ से हो पाएगा सर, मैं जरूर करूंगी। और जैसे आपने कहा डोंगरे सर तो आपके बड़े भाई हैं, तो आप उनसे भी प्रेरणा लेते रहिए और हमसे भी जुड़े रहिएगा सर, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तो चाहती यही हूँ कि जहाँ जहाँ मैं वर्कशॉप करूँ वहाँ पर MGNCRE को उस डिस्ट्रिक्ट में मुश्किल हो जाए चूज करने में कि किस इंस्टीट्यूशन को जो है फर्स्ट प्राइज दें। तो आज आपका ये जो वर्कशॉप रही है मैम, इसके बाद निश्चित रूप से आपको दिक्कत होगी चुनने में किस कॉलेज को देना है। जी मैम, मैं तो यही चाहती हूँ मैम। आपने इतने अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हम लोग को कि सारे हम जितने कॉलेज से लोग जुड़े हुए हैं सब अपने अपने यहाँ टीम बना के काम जरूर करेंगे इस पर। जी रश्मि मैम, थैंक यू सो मच फॉर दोस काइंड वर्ड्स। और अभी कोई और हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कुछ कहना चाहते हैं? तो डॉक्टर डोंगरे, तो फिर मैं क्या आज का ये सेशन जो है क्लोज करने की आपसे अनुमति ले लूं? जरूर जरूर मैडम, बहुत अच्छा लगा। और अभी 12 बजे हमारे कॉलेज में मीटिंग भी है सभी अध्यापकों की, तो हम भी चाहते हैं कि प्रोग्राम ये वाला समाप्त हो तो हम पहले प्रोग्राम की तैयारी करें। जी आइए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं डोंगरे साहब। जय भारत। जी। तो आप सबका, प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिछले 15 दिन से लगभग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा हर फोन कॉल वो रिसीव करते हैं और कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। साथ ही रश्मि मैम है जिन्होंने पीपीटी भी दी और मेरे साथ जो है इस मंच को संभाला भी। रश्मि मैम, आपका भी बहुत धन्यवाद। और मेरे यहाँ पर आज के इस इवेंट में जितने भी हमारे साथ अन्य कॉलेजेस के प्राचार्य जुड़े हुए हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। फैकल्टी मेंबर्स जो यहाँ जुड़े उनका धन्यवाद। संगीता मैम, आपका बहुत धन्यवाद। जो स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो है करती हूँ। और आशा करती हूँ आगे जब भी मैं कभी वर्कशॉप करवाऊं तो आप लोग फिर से जो है एक बार मेरे साथ जुड़े, इसी उम्मीद के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। आज धन्यवाद के इस हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और निश्चित रूप से आपकी जब नेक्स्ट वर्कशॉप होगी तो हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे मैम। तो आज का कार्यक्रम हम लोग ये खत्म करते हैं। थैंक यू मैम। जी मैडम, प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा हम लोगों का ही? हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ प्रमाण पत्र भी मतलब कि वितरित होगा हम लोगों का ऑनलाइन वर्कशॉप का? वर्कशॉप सर ऐसा था, आज की जो ये वर्कशॉप थी ये बिकॉज फैकल्टी मेंबर्स के लिए थी, प्रिंसिपल्स के लिए थी, तो इसमें प्रमाण पत्र, हाँ जी, प्रमाण पत्र का तो ऐसा है कि सिर्फ अवार्ड्स सेरेमनी थी और अवार्ड सर्टिफिकेट ही दिया जाना था। तो जो हमारे साथ इस वर्कशॉप में जुड़े हैं ऐसा तो नहीं था कि उनको प्रमाण पत्र मिलेंगे जी। लेकिन संजय सर, मैं ये समझती हूँ आप उन लोगों में से हैं जो कभी अवार्ड के लिए या प्रमाण पत्र के लिए काम करने वालों में से तो नहीं लगते। नहीं मतलब मैं पूछ लिया, कंफ्यूजन था कि हाँ जी। देखिए, मैं हमेशा आपकी कोई भी कंफ्यूजन